out in the square and the offside rather, and no addition to the Indian total, which stands on 18 for no loss. Rohit Sharma is on 10, Gill is on 8. For those of you are tuning in late, India won the toss here and decided to bat first, set New Zealand a target. Indians have been known to be great chasers, but this time they decided to put the pressure on New Zealand, and this time there's Boult from Trent Boult. Bowls short and rising. Rohit Sharma rising at his toes and plays the ball out on the onside. Not for runs. The field for Rohit Sharma. There is a man, there's a first slip, there is a man at the third man region, just hovering around the 30-yard circle. There's a man at point and cover, and that's a field on the offside. And there's a man at mid-off, as this time changing, coming round the wicket is, and Rohit Sharma drives up actually all the way to the extra cover region and has gone over the ropes. What a shot there, Ashish. शानदार, जितनी तारीफ की जाए उतने कम। और रोहित के द्वारा जिस तरह से कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस समय उन्होंने ये छक्का जड़ा, बल्ले के निचले हिस्से पर आकर के गेंद लगी थी, लेकिन उचित दूरी, और उस उचित दूरी के साथ ही ये 6 रन हासिल करते हुए रोहित शर्मा। इस मैच का पहला छक्का। ट्रेंट बोल्ट की अगली गेंद, इस बार मिडल लेग स्टंप की गेंद को हल्के से आकर पुश कर दिया फ्रंट फुट पर, कोई रन नहीं मिलेगा। भारत अभी भी 24 बिना किसी विकेट के नुकसान के। Trent Boult goes back to the top of his bowling run-up. The atmosphere here at the Wankhede Stadium, absolutely electrifying. You had to see the crowds as we made the way to this stadium. They're all thronging in here. There will be thousands who will be outside. Round the wicket comes Trent Boult, this time off in middle stump, a better line, a better length, and draws Rohit Sharma forward. He's on 16 of 11 is Rohit Sharma, and he continues his rich vein of form that he has displayed throughout this World Cup. As Trent Boult goes back to the top of his bowling run-up. Once again, runs in round the wicket from close to from a little wide of the crease this time, and Rohit Sharma was attempting to flick it. Has been called a wide. I think it brushed his pads, did he? And Latham collects, going down the leg side. It was, of course, coming round the wicket. Trent Boult is trying to cramp up Rohit for room, trying to prevent him from playing very fluently on the offside, in which case he'll have to go inside out. This time, this ball dug in short, jabs into Rohit Sharma's ribs, and Rohit in some pain. End of that over. 25 for no loss. This over is brought to you by Urja Maharatna ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। 25 रन बिना jabs into Rohit Sharma's ribs, and Rohit in some pain. End of that over. 25 for no loss. के खिलाफ जहां तक सफर का सवाल है इस विश्व कप में सेमीफाइनल मुकाबले तक का, तो आपको बता दें कि भारत ने अब तक अपने लीग मुकाबलों में कोई मुकाबला नहीं हारा है। 9 के 9 मुकाबले भारत ने जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने अपने शुरुआती 4 मैच जीते थे, उसके बाद 4 लगातार मैच हारे, और हारने की शुरुआत उनकी भारत के खिलाफ ही हुई थी धर्मशाला पर। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत टिम साउदी के द्वारा, और इस बार फ्रंट फुट पे आकर इस गेंद को हल्के से पुश किया। सेंटनर ने वहां पर गेंद को फील्ड किया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में 30 गज के दायरे के अंदर, और कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 25 बिना किसी विकेट के नुकसान के। न्यूजीलैंड और भारत के बीच आपको याद होगा कि 2019 के विश्व कप में भी एक जबरदस्त मुकाबला हुआ था, जो वर्षा की वजह से बाधित हुआ था, और उसके चलते वो मुकाबला 2 दिन चला था, जिसे भारत ने अंततः गंवाया था। और भारत के उस मुकाबले में जिस तरह से शुरुआती झटके लगे थे, और उसके बाद ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी और जडेजा ने की थी, और इजाफा, और स्कोर बढ़कर के भारत का
इसके साथ ही 26 बिना किसी विकेट के नुकसान के। चौथा ओवर इस समय प्रगति पर है। मीडिया छोर से गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए इस समय टिम साउदी। टिम साउदी न्यूजीलैंड के सबसे सफल गेंदबाज हैं जहां तक भारत के खिलाफ एक दिवसीय मैचों का प्रदर्शन की यदि आप बात करें। फिलहाल गार्ड लेने के लिए वहां पर तैयार हैं इस समय भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा। फील्ड प्लेसिंग का काफी बारीकी से मुआयना करते हुए। ऑफ साइड पर इस समय 5 खिलाड़ी, जबकि ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर। इसी बीच ये गेंद सिलेक्शन से काफी ज्यादा बाहर और वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन उपहार के रूप में भारत को मिलता हुआ, और इस एक अतिरिक्त रन के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के अब 27 बिना किसी विकेट के नुकसान के। भारत को निश्चित रूप से एक मजबूत शुरुआत की यहां पर दरकार रहेगी, और भारत ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है इस पूरे विश्व कप में, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है और साथ ही साथ भारतीय गेंदबाजों ने अपना प्रदर्शन किया है, वो निश्चित रूप से काफी लंबे समय तक याद किया जाएगा। टिम साउदी एक बार फिर से लंबे लंबे डग बढ़ते हुए हमसे दूर जाते हुए इस बार शॉट ऑफ रन, गेंद को पुल कर दिया। स्क्वायर की दिशा में फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल जाएगी। एक और चौका रोहित शर्मा के खाते में, और भारत का स्कोर 27 से बढ़कर अब पहुंच गया है इस चौके की मदद से 31 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। दोनों ही छोर से न्यूजीलैंड के तेज गति के गेंदबाज किसी किस्म का कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे। छोटी गेंद अनिंदो अगर आप करेंगे इस मैदान पर, जो कि होम ग्राउंड है रोहित शर्मा का, इस पिच की खूबियों से, हर उसकी बारीकियों से वाकिफ हैं रोहित शर्मा, और यहां पर अगर आप उन्हें इस तरह की गेंद देंगे तो निश्चित रूप से वो प्रहार करने से चूकेंगे नहीं। Absolutely. Rohit has been in imperious form in this World Cup. All the way to the square leg boundary for a lofted 6. Just a gentle flick of the wrist. Rohit Sharma, wow, what a treat to watch here. And the Wankhede Stadium on its feet to this masterclass batting. चौके की बात चल ही रही थी कि टिम साउदी का एक और वहां पर खराब गेंद बैक ऑफ लेंथ, और जिस अंदाज में उस गेंद को फ्लिक कर दिया था स्क्वायर लेग की दिशा में, कोई मौका नहीं था वहां पर खिलाड़ी के पास, और गेंद को सिर्फ दर्शक दीर्घा की तरफ जाते हुए निहारते बर रहे। इस चौके की मदद से भारत का स्कोर बढ़कर के अब 37 बिना किसी विकेट के नुकसान के। एक बार फिर से टिम साउदी तैयार, गेंद को लेकर मीडिया छोर से गेंद को पुल किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को वहां पर फील्ड किया जाएगा। इस बार सिर्फ 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा इस 1 रन की मदद से पहुंचे अब अपने 27 के व्यक्तिगत स्कोर में, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। स्ट्राइक रेट को यदि आप देखें तो लगभग 185 का स्ट्राइक रेट है इस समय रोहित शर्मा का। क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से अब तक इस पूरी प्रतियोगिता में अगर आप देखें तो इस मैच से पूर्व 503 रन बनाए थे लगभग 55 की औसत से, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। टिम साउदी के सामने अब हैं शुभमन गिल, बिल्कुल स्थिर रहते हुए जैसा कि उनका स्टांस है चिरपरित अंदाज में, और इस बार इस गेंद को फ्रंट फुट पे आकर हल्के से गेंद को पुश कर दिया और गेंद को वहां पर कप्तान केन विलियमसन ने फील्ड किया। ओवर की समाप्ति हुई 38 भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के। हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. Well, India off to an electrifying start here. 38 for no loss in 4 overs. Rohit Sharma speeding away to a 27 of 15, and Shubman Gill is on 9 at runner ball. So, electrifying start by India, and it's going to be Boult and Tim Southee who opened the operations. Both have gone for runs. Over the wicket comes Boult this time. Bowls to Rohit Sharma. Rohit Sharma essays for a drive, but then doesn't quite get it at the sweet spot of the bat. The ball rolls out tamely onto the offside to cover. And if you look at, of course, the stats, then it becomes evident, though New Zealand have not played badly,
They began an imperious note by defeating the defending champions by 9 wickets, and thereafter sort of fell away a little after their first 4 wins. As this time, Rohit Sharma hooks short and has gone sailing over the fine leg fence for yet another 6. Rohit Sharma, he bringing the Wankhede to its feet. And I'm sure all of you who are out there, all India fans, would be rejoicing at this batting. रोहित शर्मा इज ऑन फायर अगर मैं कहूं तो आनंदो गलत नहीं होगा। जिस अंदाज में उन्होंने आज भारतीय पारी की शुरुआत की है वो यकीनी तौर पे जबरदस्त। मात्र 17 गेंदों में अब तक 33 रन बना चुके हैं, 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से लगभग 194 का स्ट्राइक रेट। और इस समय क्या रणनीति में बदलाव होगा? फिलहाल फील्ड प्लेसिंग में परिवर्तन हो रहा है। टीम साउदी जो कि अब तक लॉन्ग लेग पर खड़े हुए थे वो 30 गज के दायरे के अंदर आ गए हैं फाइन लेग के स्थान पर। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को खेल दिया है स्वीपर कवर की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन दौड़कर पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। 1 रन की मदद से भारत का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंच चुका है अब 44 बिना किसी विकेट के नुकसान के। 5वां ओवर प्रगति पर है, लेकिन जिस तेज रफ्तार के साथ भारतीय पारी की शुरुआत हुई है वो मुझे लगता है कि अपेक्षाओं के अनुरूप ही है। Yes, it was expected. Once India decided to bat first, you would expect this electrifying start from Rohit Sharma. He's been doing this consistently throughout this tournament. No wonder 503 runs at a strike rate of 121.5 before this match. ट्रेंट बोल्ट एक बार फिर से तैयार होते हुए दूर वाले छोर से, लेकिन अब उनकी गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं। शुभमन गिल बैकफुट का ट्रिगर मूवमेंट और हल्के से इस गेंद को खेला, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगी और कुछ देर तक हवा में थी। हालांकि वहां पर शॉर्ट मिड विकेट एक तैनात किया गया है मार्क चैपमैन के रूप में, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से काफी ज्यादा दूर थी। सबसे ज्यादा छक्कों की अगर बात करें तो इस विश्व कप में अब तक 50 लगा चुके हैं रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है इस पूरे विश्व कप में वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ। हालांकि वानखेड़े स्टेडियम पर अगर आपकी उनकी कुछ पूर्व पारियों को देखें तो वो कोई बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नजर नहीं आती। 2015 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 16 रन बनाए थे। इसी बीच अगली गेंद हल्के से गेंद को मोड़ा, लेकिन मार्क चैपमैन वहां पर तैयार एक बार फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में जाकर गेंद को उन्होंने फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया। तो हम बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा का प्रदर्शन वानखेड़े स्टेडियम पर किस तरह का रहा है एक दिवसीय मुकाबलों में। 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 20 रन बनाए थे, 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 रन और 2023 में श्रीलंका के खिलाफ इसी विश्व कप के दौरान उन्होंने 4 रन मात्र बनाए थे। लेकिन आज उनकी पारी एक अलग अंदाज में चलती हुई। अगली गेंद और इस बार बैकफुट पे जाकर बल्ले को आड़ा करते हुए गेंद को दिशा देने की कोशिश। हालांकि वहां पर गेंद को रोकने का प्रयास ग्लेन फिलिप्स ने किया जरूर था, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई और बैकअप कर रहे थे वहां पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। 1 रन का इजाफा इस अंतिम गेंद पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 45 बिना किसी विकेट के नुकसान के। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ हैं? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। Yes, 47 for no loss. And spin being introduced for the first time. Santner being pressed into service. Rohit Sharma, 34 of 18. For those of you who are tuning in late, India won the toss, decided to bat first, and then have got off to a electrifying start, galloping away at more than 9 runs and over. And it's going to be Santner. 10 matches, 16 wickets, 24.88 at an economy of 4.81 in this World Cup so far. This is his 10th match, of course, as he'll be bowling to that man who is in imperious form, Rohit Sharma. And as Ashish was telling you all that Rohit's, it's not been one of his favourite hunting grounds. The first ball, flighted one from Santner, draws Rohit Sharma forward, respectfully bat and pad close together, allows the ball to hit the face of the bat and roll out on the onside. Santner round the wicket,
Bowls to Rohit Sharma. Rohit Sharma sweeps. Upish was in the air for a while, but it goes past that man there at the backward square leg region all the way to the boundary for 4 runs. Looked a little uppish, looked a little in the air as Santner bowled this one. Rohit Sharma going for that sweep shot, was in the air, but always eluding that man at the backward square leg region, maybe by about a feet or so, and racing away to the rope. Santner once again from the commentary box and round the wicket. Bowls to Rohit Sharma, and this ball is going all the way to the square leg mid-wicket region for a 6. This man seems to be blazing away, is Rohit Sharma. 44 of 21. Ashish, what do you have to say? आतिशी पारी इस समय होती हुई रोहित शर्मा के द्वारा, और जिस शानदार अंदाज में न केवल उन्होंने पेसर्स का मुकाबला किया है बल्कि सेंटनर के इस ओवर में पहले ही ओवर के दौरान उनका मानो आत्मविश्वास ध्वस्त कर देना चाहते हो। पहले दूसरी गेंद पर चौका और उसके बाद तीसरी गेंद पर छक्का। Santner now. The field well spread out, no slip as he bowls to Rohit Sharma, this time dropping it, flattish trajectory. Rohit quickly plays it out towards the backward square leg region, a flick of the bat, and takes a quick single. So Rohit will be at the non-strikers end for a change, maybe for a relief for the New Zealand bowlers, as it is now Shubman Gill who is facing Santner. Santner round the wicket to Shubman Gill. Shubman Gill this time straying down into his pads. Shubman Gill trying to make room and flick it away, doesn't quite find the middle of the bat nor the placement. The field for Shubman Gill, there is a man at point, at a backward point, a point, a cover, extra cover, a long off. Santner bowls, and this time Shubman Gill is once again forward in defence. They seem to be playing in two different modes. End of that over, 58 for none. और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर। Not for runs towards that short cover region. There is a man stationed at point, a man at the backward of point region. There's a field in the offside for you. On the onside you have a mid-on, you have a mid-wicket, and you have a man stationed there at fine leg. As Ferguson running away from us, the quickest of the New Zealand bowlers. Ferguson bowls, and it's driven gloriously by Shubman Gill this time. Pitched up delivery, it was asking to be hit, and Shubman Gill said, I shall not let this go. Drives it handsomely all along the ground. A nice follow through of the bat, and the ball racing away to the cover boundary for 4 runs. Ferguson walking back to the top of his bowling run up from under us at the commentary box end. And he's bowling to Shubman Gill. Shubman Gill waits, has a look around the field as Ferguson goes away from us once again, wide of the crease and bowls to Shubman Gill, once again straying down the pads, and it's been flicked away past that mid-wicket fielder. A ricochet of the hands takes it to the deep mid-wicket region, gives the batsman ample time to come back for the second run. Shubman Gill with that, with those 2 runs, takes India to 67, and Shubman Gill moves to 17. 17 of 17 deliveries. Rohit Sharma, Wankhede is waiting for his half century, as this time he bowls to Shubman Gill. Shubman Gill, this is just a gentle push of the bat, and the ball is almost beating the fielder to the long off boundary. Has it been cut off? We'll have to wait for a replay and see it there. It was Tim Southee, 2 runs, managed to just retrieve the ball inches from the ropes there, Tim Southee, and just rolled over the ropes even as he prevented the ball from hitting them. So
Is there a referral? Yes, we're waiting for a referral, whether the ball had touched the ropes or not. But from the replay, it seems no, it didn't. So an effort worth it from Tim Southee. And India 69 for no loss. Ferguson goes away from us over the wicket from a little wide of the crease, bowls to Shubman Gill. Shubman Gill this time to a ball which is rises on his toes with a flick of the bat, plays it away towards the mid-wicket region, not for runs. Went to the last over of the 8th over in this Indian innings. India racing away to 69 for no loss. And this has been just the kind of start India would have wanted to dominate proceedings here. Will New Zealand be able to come back? Will they claw back? Will they pick up a wicket here? Ferguson bowls now to Shubman Gill. Shubman Gill drives, this time not as sweetly timed. Ball rolls out towards the mid-on region. Ended that over 70 for no loss India. MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. तो फर्ग्यूसन के इस पहले ओवर में 9 रन आते हुए और भारत इन 9 रनों की मदद से फिलहाल 70 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के 8 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने अब तक बढ़िया प्रदर्शन किया है। रोहित शर्मा ने 28 गेंदों का सामना करते हुए 47 रन बनाए हैं, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। लेकिन शुभमन गिल अपेक्षाकृत थोड़ा सा धीमे हैं, उनके अपेक्षा 20 गेंदों में 20 रन उन्होंने भी बनाए हैं। 100 का स्ट्राइक रेट उनका है। 3 चौकों की मदद से ये 20 रन अब तक उनके बने हैं। शुभमन गिल ने इसी मैदान पर इस विश्व कप में एक शानदार पारी खेली थी 92 रनों की श्रीलंका के खिलाफ, और आज उसकी कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति करना चाहेंगे। फिलहाल दूर वाले छोर पर एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर परिवर्तन। टीम साउदी इस समय है वहाँ पर ट्रेंट बोल्ट के स्थान पर। तो गेंदबाजी में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और देखना यह है कि क्या छोर बदलने के साथ टीम साउदी अपनी टीम के लिए वो सफलता हासिल कर पाएंगे जिसका उनको इंतज़ार है, जो कि अभी तक किसी भी न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाज को हासिल नहीं हुई है। नए ओवर की शुरुआत, नए स्पेल की शुरुआत गरवारे छोर से दाएं हाथ से टीम साउदी, और सामने है उनके शुभमन गिल। फ्रंट फुट पे आकर इस गेंद को हल्के हाथों से ड्राइव किया, लेकिन सीधा मिड ऑन की दिशा में 30 गज के अंदर फील्डर मौजूद है और गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया जाएगा जेम्स निशम के द्वारा, जो कि इस समय परिवर्तित खिलाड़ी के रूप में वहां पर मौजूद हैं। इस 1 रन की मदद से भारत का स्कोर 71 पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए हैं शुभमन गिल। इस 1 रन की मदद से 21 रनों का अब तक योगदान उन्होंने भारतीय पारी को दिया है, और रोहित इस समय अपने अर्धशतक के काफी नजदीक। मात्र 3 रनों की उनको आवश्यकता। इससे पहले इस विश्व कप में 1 शतक और 3 अर्धशतक जड़ चुके हैं रोहित शर्मा। टीम साउदी लंबे लंबे डग बढ़ते हुए एक बार फिर से तैयार, और इस बार गेंद को गेंदबाज के सर के ऊपर से उठा करके खेल दिया। गेंद हवा में है, फील्डर नीचे आते हुए क्या लपक लिए जाएंगे। जी हां, केन विलियमसन ने टीम के कप्तान न्यूजीलैंड के कोई गलती नहीं की। एक मुश्किल कैच पीछे की तरफ जाकर एक अच्छे पूर्वानुमान के साथ उन्होंने उस कैच को मुकम्मल किया, और इस तरह से भारत को पहला झटका मिलता हुआ 71 के स्कोर पर। और रोहित शर्मा, जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि अपने होम ग्राउंड पर एक बढ़िया पारी खेलेंगे, धीमी गति की गेंद थी, ऑफ कटर थी, गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं और गेंद की पिच के बिल्कुल नजदीक नहीं पहुंच पाए थे। बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद को जाकर टकराई, जिसकी वजह से गेंद को दूरी नहीं मिल पाई। गेंद हवा में काफी ऊंची उठ गई थी, और इस तरह से रोहित शर्मा इस समय 29 गेंदों का सामना करने के बाद 47 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं। Yes, absolutely. This was a brilliant knock by Rohit Sharma. He has done his job here, Rohit Sharma, and given India the electrifying start they needed. He's gone for 47, couldn't get to his 50, but nevertheless India's batting lineup is long enough, and out comes the man Virat Kohli. 71 for 1, 8.2 overs gone. The last wicket to fall was that of Rohit Sharma, the first wicket in fact of the Indian innings. 47 of 29 deliveries, and the man who has come to take his place is of course Virat Kohli. 594 runs in this World Cup, the highest run maker in this version of the World Cup, at a strike rate of 88.22,
2 century knocks in this World Cup of his. What a World Cup this has turned out for Virat Kohli. Virat Kohli, there's some adjustments in the field being carried out by the New Zealand side. The wicket of Rohit Sharma will surely be add a spring to their strides. They've been looking desperately for that wicket, looking to stem that flood of runs which was coming from Rohit Sharma's bat. Is absolutely in blistering mood was Rohit Sharma, and the New Zealanders were found scratching their heads as this time Tim Southee comes and bowls to Virat Kohli to this ball, an off middle stump coming in, and quietly plays it away out on towards the mid-on region. Rohit Sharma attempting to play that uppish looking drive, which he does so often coming down the track, had to reach out for that ball. This is a slower one, reached out for that ball, and as he played that uppish drive, the bat sort of quivered in his hand, which resulted in the fact that the ball fell short of the ropes by about a couple of yards, and Kane Williamson did the rest. As this time he's wrapped on the pads is Virat Kohli. The New Zealand fielders seem half convinced whether it's worth going for a referral or not. Kane Williamson in discussion with his players. 71 for 1. Will they go? This is a priceless wicket if they get it. And yes, they've gone for the referral upstairs. What do you think, Ashish? जहाँ काफी नजदीकी मामला हो सकता है। पिच का मिजाज थोड़ा सा धीमा है, गेंद थोड़ा सा रुक करके आ रही है, ठीक तरह से बल्ले पर आ नहीं रही, और जब आपने ध्यान दिया होगा कि रोहित शर्मा बाहर जा रहे थे और कोहली मैदान पर आ रहे थे, तो संभवतः यही बात उन्होंने कोहली को की कि इस पिच पर थोड़ा सा संभल कर खेलने की आवश्यकता है, पिच थोड़ा धीमी हो चली है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इस विश्व कप में इस पिच का इस्तेमाल 2 मरतबा हो चुका है। यहाँ पर तीसरे अंपायर जो कि आज के हैं जोएल विल्सन त्रिनिदाद के, वो सबसे पहले देखेंगे क्या गेंद और बल्ले के बीच में किसी तरह का संपर्क हुआ, और अगर गेंद और बल्ले के बीच में किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है तो फिर वो देखेंगे ट्रैकर पर। लेकिन फिलहाल अल्ट्रा एज में हरकत होती हुई नजर आ रही है, और उस हरकत को देखते हुए जॉइंट स्क्रीन पर यहां पर बैठे तमाम दर्शकों में एक उत्साह की लहर दौड़ी है, और जानते हैं कि वहां पर उनके चहेते विराट कोहली सुरक्षित हैं। Yes, Virat Kohli safe, and a whole sigh of relief goes down the Wankhede. Tim Southee, far end from the pavilion end, bowls. This time Virat Kohli is forward with an angled bat, plays it all along the ground to the mid-wicket region. Southee 1 for 26, accounting for the dismissal of Rohit Sharma. India 75 for 1. Suddenly the lull after there's a storm. Rohit Sharma's departure. What will be India's approach? Will it be a little caution mixed with aggression? One will have to wait and see out a few balls what Virat Kohli, what kind of instructions he's in under, and what kind of mood he is in. Middle and off stump, the next delivery played out quietly on the onside, not for runs. End of that over, 9th over, 75 for 1. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। तो एक घटनापूर्ण ओवर समाप्त होता हुआ टीम सऊदी पहले गेंदबाज जिन्हें अपनी टीम के लिए यहां पर सफलता मिलती हुई, और वो भी एक बड़ी सफलता, कप्तान रोहित शर्मा का विकेट उन्होंने हासिल किया, उन्हें कैच करवा करके लॉन्ग ऑफ की दिशा में कप्तान केन विलियमसन के हाथों में। भारत को पहला नुकसान हुआ 71 के स्कोर पर। विराट कोहली उनकी जगह पर इस समय भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे शुभमन गिल के साथ मिलकर, और ये देखना अरिंदो निश्चित रूप से काफी दिलचस्प रहेगा जो द्वंद्व है बीच मैदान पर टीम सऊदी का और विराट कोहली का, वो विश्व प्रसिद्ध है। एक दिवसीय मैचों में इन दोनों के बीच
के कॉन्टेस्ट को आप देखें, टक्कर को देखें या द्वंद्व को देखें, तो आप देखेंगे कि 205 रन बनाए हैं विराट कोहली ने टीम साउदी के खिलाफ लगभग 101 की स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन 6 बार टीम साउदी ने उनको एक दिवसीय मैचों में आउट किया है। नए ओवर की शुरुआत फर्ग्यूसन के द्वारा हमारे नजदीक वाले छोर से और फ्रंट फुट पे आकर इस गेंद को पुश किया, लेकिन 30 गज के दायरे के अंदर कप्तान केन विलियमसन मौजूद अपने बाईं तरफ जाकर पूर्वानुमान के साथ उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया। 10वां ओवर इस समय प्रगति पर है। भारत 75 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फील्ड प्लेसिंग पर भी एक निगाह दौड़ा लेते हैं। थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर और एक खिलाड़ी मिड ऑफ की दिशा में अगली गेंद, और इस बार बहुत ही नियंत्रित अंदाज में इस गेंद को खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल जाएगी 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ भारत का स्कोर अब 79 1 विकेट के नुकसान पर। शुभमन गिल इस चौके की मदद से पहुंच गए हैं 25 पर 23 गेंदों का सामना करने के बाद, जिसमें 4 चौके शामिल हैं। लगभग 108 का स्ट्राइक रेट उनका। जब तक रोहित शर्मा बीच मैदान पर थे तो अपेक्षाकृत थोड़ा खामोश नजर आ रहे थे, लेकिन अब उनकी आंखें जमी हुई हैं। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को बैक टू द बॉलर ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन एक टप्पे के बाद गेंद को फॉलो थ्रू में फील्ड किया खुद गेंदबाज फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन की यदि बात करें तो इस प्रतियोगिता में उन्होंने अब तक कुल मिलाकर 10 विकेट हासिल की हैं। सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं सेंटनर, जिन्होंने 16 विकेट अब तक अपनी टीम के लिए हासिल किए हैं। लेकिन पिछले विश्व कप में फर्ग्यूसन का प्रदर्शन खासा अच्छा था। कुल मिलाकर उन्होंने उस प्रतियोगिता में स्टार्ट के बाद सबसे ज्यादा सफलताएं हासिल की थी। अगली गेंद, और इस बार फिर से गेंद को सीमा रेखा के दर्शन कराने से नहीं चूके शुभमन गिल। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए एक बार फिर से भारत 83 1 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद क्रीज के कोने से की हुई थी, पटकी हुई गेंद थी और एक नियंत्रित पुल शॉट खेलकर इसे पहुंचा दिया था लॉन्ग लेग की दिशा में। सीमा रेखा से बाहर किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई अवसर नहीं वहां पर। स्लिप कॉर्डन पूरी तरह से खाली। फर्ग्यूसन एक बार फिर हमसे दूर दौड़ते हुए तेज कदमों के साथ दाएं हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार ये गेंद बेहतर लेंथ की, लेकिन मिडल और लेग स्टंप पर आती हुई इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ दिया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन का इजाफा इस बीच हो जाएगा, इससे पहले की गेंद पहुंचे वापस विकेट कीपर टॉम लैथम के दस्तानों की तरफ। इस 1 रन की मदद से भारत का स्कोर अब 84 1 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदों का, बल्कि 1 गेंद का अब यहां पर आना बाकी है, और भारत ने एक अच्छी शुरुआत की है टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। अब तक का जो एकमात्र झटका भारत को लगा है वो है रोहित शर्मा के रूप में, जब कप्तान केन विलियमसन ने पिछले ओवर के दौरान टीम साउदी की गेंद पर उन्हें लपका था। फर्ग्यूसन की इस बीच अगली गेंद, और इस बार गेंद की लाइन के पीछे हाकर हल्के से गेंद को पुश किया। शॉट मिड ऑन पर गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 84 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर। सुनना न भूलें, आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। Well, we get into power play 2 now as Tim Southee from the far end will be bowling to Shubman Gill, who is beginning to open his shoulders up, play his shots. He's playing rather quietly the sheet anchor's role while Rohit Sharma was there. And this time, this ball pitching outside the off stump moves further away and wide outside the off stump. In fact, after pitching, it moved rather prodigiously after pitching on the seam. As he walks back to the top of his bowling run-up. Tim Southee, 84 for 1 India. He runs in over the wicket from the far end to Shubman Gill. Shubman Gill forward in defence. Bat and pat close together. It's straight down the track for Tim Southee to field of his own bowling. Southee's figures so far: 3.2 overs, including this one, 26 runs and 1 wicket, that of Rohit Sharma. The shadows beginning to just about lengthen here a little
at the Wankhede Stadium as we move towards 3 o'clock here. Southee runs in over the wicket now. A hush around the Wankhede Stadium this time. Straying out of the pads, has been flicked away all the way to the mid-wicket boundary for 4 runs. Straying onto the pads, the cardinal mistake you can make to a batsman in form, and Shubman Gill was not willing to let go of that opportunity. Full face of the bat, a flick of the wrists, and the ball sped away past that field at mid-wicket, all the way to the deep mid-wicket boundary for 4 runs. Some adjustments in the field. They were the field, a well spread out field now. There is a man at deep fine leg, there is a man at mid-wicket, there is a man stationed there at mid-on. A deep mid-off, an extra cover, a backward point, and a man at the sweeper cover position. As this time he bowls to Gill. Gill flicks it away nicely off his toes to the mid-wicket region. He will pick up a single. Will Shubman Gill take India's score now to 89 for 1. 89 for 1, and we are into over number 11. So India going at well over 8 and over. Virat Kohli, he's come to the crease, he's in 4, and the way Virat Kohli again has played in this season, one will hope that in a crunch match like this, in a do-or-die match like this, he will come good for India. So will his billions of fans. As Southee bowls this time, a better line, a better length, often middle stump, rising, and Virat Kohli rising on his toes and playing the ball quietly out on the offside, not for runs. The ball being relayed back to Tim Southee. Tim Southee, he did not play the entire series, came into the side rather late, and Henry was taking his place before that. He's just played 3 matches in this World Cup. End of that over as the ball is played out quietly on the onside. 89 for 1. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें. गेंदबाजी में एक और परिवर्तन. मीडिया छोर से 1 ओवर का स्पेल था पहले सेंटनर का, लेकिन अब दूसरे स्पेल के लिए आ रहे हैं उसी छोर से. पहले ओवर की गेंदबाजी में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए थे, और कुल मिलाकर 11 रन उन्होंने अपने उस ओवर में दिए थे. उनकी गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का लगा था, और 3 गेंदें ऐसी थी उस ओवर में जिस पर कोई रन बनाने में भारतीय बैटर्स कामयाब नहीं हुए थे. पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है वहां पर शुभमन गिल. विकेट कीपर टॉम लैथम बिल्कुल स्टंप के नज़दीक चिपके हुए. ऑफ साइड की फील्ड यदि आप देखें तो एक खिलाड़ी वहां पर थर्ड मैन पर 30 गज के मुहाने पर बैकवर्ड पॉइंट कवर का खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा के नज़दीक एक्स्ट्रा कवर, और लॉन्ग ऑफ बिल्कुल हमारे कमेंटेटर बॉक्स के नीचे जहां पर खड़े हैं रचिन रविंद्र. पहली गेंद सुरक्षात्मक ढंग से. सेंटनर इस विश्व कप में काफ़ी प्रभावित करते हुए नजर आए हैं. कुल मिलाकर 16 विकेट अब तक उनके नाम हैं, और न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं इस विश्व कप का, जहां तक सवाल है. अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद के पिच के नज़दीक पहुंचकर हल्के से गेंद को पुश किया ऑन साइड की तरफ. मार्क चैपमैन वहां पर तैयार थे. अपने बाईं तरफ जाकर गेंद को उन्होंने फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को इसी के साथ समाप्त कर दिया. मिशेल सेंटनर एक बार फिर से क्रीज के कोने से फ्लाइटेड गेंद के टर्न होने का इंतजार किया. बैकफुट पे जाकर गेंदबाज के दाईं तरफ से प्रेस करते हुए गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन लंबे ऊंचे कद के सेंटनर ने दाईं तरफ जाकर गेंद को फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को निस्तो नाबूद कर दिया.
ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर, एक फाइन लेग और एक खिलाड़ी मिड विकेट क्षेत्र में। सेंटनर की अगली गेंद फिर से फ्लाइटेड और इस बार इस गेंद को सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर पुश किया। किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे और सेंटनर को मुझे लगता है कि यहां पर कोई बहुत ज्यादा खुलकर खेलने का प्रयास भी नहीं करेंगे। दोनों ही बैटर्स जानते हैं कि बहुत ही सटीक गेंदबाजी करते हैं और जिस तरह से अपने गेंदों में विविधता प्रदान करते हैं उसकी गति को लेकर कहीं ना कहीं अचंभित करते हैं। अगली गेंद और इस बार गेंद को स्वीप करने के अंदाज में खेल दिया। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को फील्ड किया जा रहा है, लेकिन तब तक 2 रन दौड़कर आसानी के साथ पूरे कर लेंगे और इन 2 रनों के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के 91, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता था भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने और टॉस जीतकर जैसी कि अपेक्षा थी उन्होंने फैसला किया पहले बल्लेबाजी करेंगे। एक अच्छी शुरुआत भारत को मिली। भारत का पहला विकेट गिरा 71 के स्कोर पर। कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए थे पहले विकेट के रूप में। इसी बीच अगले गेंद बैकफुट पे जाकर कट किया, लेकिन स्वीपर कवर पर प्रोटेक्शन मौजूद है, 1 रन से ज्यादा नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हुई और 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 92 रन भारत का 1 विकेट के नुकसान पर। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. Well, 92 for 1, 12 overs gone. Kohli is on 4. Shubman Gill is on 38. And India looking good here at the Wankhede Stadium as Ferguson has been pressed in for the 3rd time in this innings. He's already bowled 2 overs, none for 18. Those are his figures. India, of course, got off to an electrifying start, riding on the shoulders of Rohit Sharma, who scored 47 runs of just 29 deliveries and 4 hits to the boundary, 4 fours and 4 sixes in that innings of his. And he gave India that electrifying start India was looking forward to. This is part of the strategy, a kind of strategy that the captain himself devised as the Indian batting coach Vikram Rathore was heard saying. Not Vikram Rathore was heard saying rather. Wicket all the way to the boundary for 4 runs. No chance whatsoever. Mitchell was diving, rising to his height, but then it went beyond his hands and racing away to the ropes for 4 runs. So, what a shot there. This short arm pull that has become a speciality of Shubman Gill. Ferguson bowls this time, and once again giving him room outside the leg stump. It has been pulled away imperiously over backward square leg for a huge towering 6, taking Shubman Gill now to 48 and India to 101 for 2. We're in over number 13. Things are getting electrifyingly fast for the New Zealanders, and they must be wondering how to stop this absolute floodgate of runs. Kane Williamson in conversation with his bowler, and I think the New Zealand bowlers, it must be said, guilty of bowling far too many short deliveries, straying in line, giving the batsmen the opportunity to free their arms. जहाँ लेकिन क्रेडिट देना होगा भारतीय बैटर्स को, जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने अभी तक की है। अगली गेंद और इस बार फ्रंट फुट पे जाकर इस गेंद को हल्के से पुश किया मिड ऑफ की तरफ, और इससे पहले कि वहां पर गेंद को फील्ड किया जाता कप्तान के द्वारा और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो किया जाता, बहुत तेजी के साथ दौड़कर इस 1 रन को चुराने में कामयाब रहे दोनों बैटर्स। इस 1 रन की मदद से भारत 103, 1 विकेट के नुकसान पर। 49 now, शुभमन गिल। पहले सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल अब आप सुन सकेंगे खास खबरों के बाद। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें। पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। प्रचार थमने के पहले मुख्य पार्टी भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों के कई शीर्ष नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। प्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए शुक्रवार 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG विकास मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में बस हादसे के प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। भोपाल जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराने के लिए कल लाल परेड मैदान से मतदान दलों को चुनाव सामग्री के साथ रवाना किया जाएगा। इसके पहले आज से यातायात मार्ग परिवर्तित रहेंगे। विधानसभा चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम के सुहागपुर में जनसभा की। यहां के बाद वे पिपरिया, घोड़ाडोंगरी और खातेगांव में जनसभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दतिया में जनसभा को संबोधित किया। और ICC क्रिकेट विश्व कप में इस समय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 12.2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 102 रन बना लिए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। मध्य प्रदेश है। आइए एक बार फिर आनंद लेते हैं क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। बनाए थे, जबकि दूसरे 50 रन बनाने में भारत ने 74 गेंदों का इस्तेमाल किया। और ये बात समझी भी जा सकती है, जब पहले 50 रन बने थे तो रोहित शर्मा क्रीज पर थे, लेकिन दूसरे 50 रन बनाते बनाते बीच में ही शुभमन गिल का साथ छोड़ गए थे रोहित शर्मा, और विराट कोहली उसके बाद बीच मैदान पर आए। और जैसा कि हमने बताया कि ये पिच जो कि इस्तेमाल की गई पिच है इस विश्व कप में 2 मरतबा, वो थोड़ी सी अपेक्षाकृत धीमी है और उस पर बल्लेबाजी करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। लगातार तेज गति से स्ट्रोक लगाकर बड़े शॉट्स खेलकर रन बटोरना निश्चित रूप से बहुत आसान नहीं है। फिलहाल गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, इस समय रचिन रविंद्र बीच मैदान पर नजर आ रहे हैं गेंदबाज के रूप में, और क्या शानदार उनका ये विश्व कप रहा है। देखना है कि आज अपनी टीम के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। अगली गेंद, और इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद के पिच के नजदीक पहुंचे, गेंद को खेल दिया वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन निशम वहां पर मौजूद है। गेंद को उन्होंने फील्ड किया, लेकिन तब तक 3 रन दौड़कर आसानी के साथ वहां पर, बल्कि 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर के भारत का अब 106, 1 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली के लिए एक स्लिप लगा करके रखी है रचिन ने अब तक इस विश्व कप में कुल मिलाकर 5 विकेट हासिल किए हैं, लेकिन इस बार इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक आसान सा रन मिल जाएगा इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा सके, और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के भारत का अब 107, 1 विकेट के नुकसान पर। 14वां ओवर समय प्रगति पर है। स्लिप का खिलाड़ी अब हटा लिया गया है शुभमन गिल के लिए। रचिन राउंड द विकेट आते हुए फ्लाइटेड गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के पिच के नजदीक पहुंचे और लंबा शॉट लगाते हुए गेंद को खेल दिया है। फिर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में खड़े हुए फील्डर की तरफ, और इसके साथ ही न केवल उन्होंने ये सिंगल पूरा किया, बल्कि साथ ही साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। मात्र 41 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने ये अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल है। लगभग 122 का स्ट्राइक रेट। क्या शानदार प्रदर्शन 2023 में इस बल्लेबाज का रहा है। अब तक कुल मिलाकर 1550 रन उनके बल्ले से निकले हैं इस कैलेंडर वर्ष की यदि बात की जाए। अगली गेंद को खेल दिया वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। 2 रन और बटोर लिए जाएंगे विराट कोहली के द्वारा। इन 2 रनों के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के अब 110, 1 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली का इस विश्व कप में यदि बात करें तो प्रदर्शन खासा अच्छा रहा है, लगभग 99 की उनकी औसत। अगली गेंद और फिर से खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर फील्डर मौजूद जरूर था, टाइम लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास भी उन्होंने वहां पर किया, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर थी और गेंद सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए निकल गए। तो पहले ओवर में किसी किस्म का कोई प्रभाव डालते हुए रचिन निश्चित रूप से नजर नहीं आते भारतीय बैटर्स पर। और ये 2 बैटर्स ऐसे हैं, बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि इस कैलेंडर वर्ष में खासा अच्छा प्रदर्शन एक दिवसीय मैचों में करने में कामयाब रहे हैं। दोनों ने ही 1000 से ज्यादा रन इस कैलेंडर वर्ष में बनाए हैं। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से तैयार। इस बार ये गेंद अपेक्षाकृत लोअर ट्रेजेक्ट्री की, बैकफुट पे जाकर गेंद को हल्के से पुश किया, गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया। ओवर की समाप्ति हुई और
इस तरह से 14 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 114 एक विकेट के नुकसान पर। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से मोड़ दिया स्क्वायर। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। A 114 for 1, New Zealand scratching their heads for answers how to stem this flow of runs. Santner bowls from the far end. Shubman Gill to this ball, pitching just outside the off stump and spinning away. Cuts, not for runs, to backward of point. Shubman Gill now has raced to his 50 of 42 deliveries. This young man has been hailed as one of the most handsome looking batsmen to watch. Handsome not in the way he looks, handsome in the way he plays. As he plays this ball away towards the backward of point region, drives for a single. He'll move on to the non-strikers and bring and strike Virat Kohli. Virat Kohli, of course, 594 runs before this match already in this World Cup at a strike rate of 88.2. He has been the sheet anchor of that Indian middle order, the batsman around whom the others have played, while of course Rohit Sharma at the top of the order has blazed away, giving India starts which has explained their dominance with the bat in this World Cup. Santner bowls this time to Virat Kohli. Virat Kohli forward to this delivery on the off and middle stump, tempting Virat Kohli to come out and drive, but Kohli waits for that ball instead to spin into him. Santner bowls this time, giving Kohli a little room to free his arms, and he drags it away to this ball outside the off stump towards the long on region. He'll pick up a single. Kohli, he moves to 15 and he's signalling something to Gill. I'm not too sure what it was, but something to do with the kind of ball Santner is bowling. Gill waits now. This is a flighted delivery from Santner. It has been played away towards, all along the carpet, towards the sweeper covered region. Not quite timing it as sweetly as he would have wanted to was Shubman Gill this time. And however, with that shot, Shubman Gill's individual score moves to 52 of 44 deliveries. And Virat Kohli is on 15, and it's going to be Virat Kohli who's on strike. And Santner now round the wicket, bowls to Kohli. Kohli drives, finds the gap to the right of the mid-off fielder, but there is backup there at the long off region, and Chapman throws the ball back to the bowler. End of that over. 118 for 1 India at end of 15 overs. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। तो ड्रिंक्स इंटरवल इस समय यहाँ पर लिया जा रहा है इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। 2023 के आईसीसी मेंस विश्व कप का ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जा रहा है। और आप में से जो श्रोता अभी अभी इस प्रसारण के साथ जुड़े उनके लिए मैं बता दूं कि आज भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता था और अपेक्षाओं के मुताबिक टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। रोहित शर्मा ने भारतीय पारी को एक तेज तर्रार शुरुआत दी थी और कुल मिलाकर उन्होंने 47 रन बनाए, लेकिन टीम साउदी के ओवर के दौरान उन्होंने विलियमसन को अपना कैच दे दिया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और भारत की टीम को लगने वाला वो पहला झटका था जब भारत का कुल स्कोर 71 रन पर था। लेकिन शुभमन गिल एक छोर को लगातार संभाले हुए हैं और अपना अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। शुभमन गिल ने इस कैलेंडर वर्ष में अब तक आप देखें तो 1552 रन बनाए हैं, जो कि किसी भी खिलाड़ी के द्वारा इस कैलेंडर ईयर में ओडीआई मैचेस में बनाए गए सबसे ज़्यादा रन हैं। और उनका साथ इस समय कौन निभा रहे हैं? जी हाँ, विराट कोहली,
जो कि इस कैलेंडर वर्ष में इस मैच से पूर्व 1206 रन बना चुके थे और सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की फहरिस्त में वो शुभमन गिल के बाद दूसरे स्थान पर है। विराट कोहली का ये विश्व कप वैसे भी काफ़ी शानदार रहा है। सबसे ज़्यादा रन उन्होंने इस विश्व कप में इस मैच से पूर्व बनाने का श्रेय हासिल किया। 594 रन अब तक उनके बल्ले से निकले हैं, जिसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक हैं, जबकि शुभमन गिल के लिए आज का अर्धशतक इस विश्व कप का उनका चौथा अर्धशतक था। अब तक शतक उनके बल्ले से नहीं निकला है। इस कैलेंडर वर्ष में यदि आप देखें तो शुभमन गिल ने कुल मिलाकर 5 शतक जरूर लगाए हैं, लेकिन इस विश्व कप में अभी उनके पहले शतक का इंतजार किया जा रहा है। तो अब तक जो सफर तय हुआ है पारी का, भारतीय पारी का, वो काफ़ी संतोषजनक कहा जा सकता है। एक अच्छी शुरुआत भारत को मिली और जब देखा कि पिच का मिजाज अब थोड़ा सा बदल चुका है, ये इस्तेमाल की हुई पिच है जहां पर गेंद टप्पा खाने के बाद बहुत तेज़ी के साथ बल्ले पर नहीं आ रही और गेंद थोड़ा सा रुक करके आ रही है, और ऐसे में लगातार जो बड़े स्ट्रोक लगाने का सिलसिला हमने शुरू में देखा और वो फिलहाल नदारद होता हुआ भारतीय पारी से नजर आ रहा है। दोनों ही बल्लेबाज जब कमज़ोर गेंद मिलती है तो उसका भरपूर लाभ उठाकर प्रहार करते हैं और कुछ बड़े स्ट्रोक्स उन्होंने लगा करके यहाँ पर दिखाए भी हैं। अन्यथा स्ट्राइक रोटेट करते हुए लगातार भारतीय पारी को वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत में भारतीय पारी का औसत जो स्कोर था वो 9 के ऊपर मंडरा रहा था, जो कि अब गिर करके 7.86 रन प्रति ओवर का हुआ है। न्यूजीलैंड की तरफ से अब तक कुल मिलाकर 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है। ट्रेंट, बोल्ट और टिम साउदी ने आक्रमण की शुरुआत की थी। न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से ट्रेंट बोल्ट ने अपने 4 ओवर में 29 रन दिए, कोई सफलता नहीं, और जहां तक उनकी इकोनॉमी का सवाल है तो वो थोड़े से महंगे साबित होते हुए नजर आए थे अपने शुरुआती दौर में, शुरुआती पहले 2 ओवर में खास तौर पर, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी की। टिम साउदी ने अब तक 4 ओवर की गेंदबाजी की है, कोई मेडल नहीं, 31 रन, 1 सफलता उनके नाम है। अब तक की एकमात्र सफलता जो कि न्यूजीलैंड की टीम को मिली है। मिशेल सेंटनर ने अब तक 3 ओवर की गेंदबाजी की है, 18 रन, बिना किसी मेडन के, कोई सफलता उनके नाम नहीं। लॉकी फर्ग्यूसन ने भी 3 ओवर की गेंदबाजी की है, कोई मेडन नहीं, 30 रन और कोई सफलता उनको अभी तक हासिल नहीं हुई है। रचिन, रविंद्र ने 1 ओवर की गेंदबाजी की है मीडिया छोर की तरफ से, और देखना यह है कि क्या ड्रिंक्स इंटरवल के बाद वो गेंदबाजी के क्रम को जारी रखते हैं, और अपने पहले ओवर में खासे महंगे साबित हुए थे। कुल मिलाकर 10 रन उनके उस ओवर में भारतीय बैटर्स ने बनाए। तो फिलहाल भारत का स्कोर है 15 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 47 रन बनाकर कप्तान रोहित शर्मा वापस पवेलियन लौट चुके हैं, और बीच मैदान पर इस समय शुभमन गिल 52 रन बनाकर नाबाद हैं, और साथ में है विराट कोहली 16 रनों के साथ। उनका योगदान अब तक भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ड्रिंक्स इंटरवल के बाद खेल एक बार फिर से शुरू होने के लिए तैयार हैं। मीडिया छोर की तरफ से गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए रचिन की ये गेंद, इस बार गेंद की पिच के नजदीक पहुंचकर विराट कोहली ने इस गेंद को ड्राइव कर दिया, लेकिन लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद है। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा इस अवसर पर। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के भारत का पहुंचता हुआ अब 119, 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफ साइड में 30 गज के दायरे के अंदर इस समय 3 फील्डर मौजूद हैं। दूसरे पावर प्ले के दौरान आप अधिकतम 4 फील्डर्स को 30 गज के दायरे के बाहर तैनात कर सकते हैं। 3 फील्डर ऑफ साइड में 30 गज के दायरे के अंदर, जबकि 2 फील्डर ऑफ साइड में, एक लॉन्ग ऑफ और एक खिलाड़ी डीप पॉइंट पर सीमा रेखा के नजदीक। अगली गेंद बैकफुट पे जाकर गेंद को कट किया, लेकिन डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद। 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा शुभमन गिल को। शुभमन गिल इस 1 रन की सहायता से अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अपने 53 के व्यक्तिगत स्कोर पर, और भारत का स्कोर इस 1 रन की मदद से बढ़कर पहुंचा 120, 1 विकेट के नुकसान पर। इस विश्व कप में इससे पहले जो 4 मुकाबले यहाँ खेले गए हैं, उसमें 3 मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम ने 350 से ज़्यादा रन का स्कोर बनाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन आज जिस तरह से पिच का मिजाज है, मुझे लगता है आनंदो, शायद वो आंकड़ा छुपाना भारत के लिए शायद नामुमकिन हो। Yeah, it does look to be very, very difficult. अगली गेंद रचिन की, और इस बार हल्के से गेंद को वहां पर दिशा देना चाहते थे, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद ट्रेंट बोल्ट, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त किया। विराट कोहली के लिए इस समय एक शॉट एक्स्ट्रा कवर, कप्तान खुद विलियमसन वहां पर मौजूद है। अगली गेंद, और इस गेंद को फ्रंट फुट पे आकर
ड्राइव किया, लेकिन एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में फील्डर मौजूद, गेंद सीधा फील्डर के हाथ में पहुंचती हुई और रन बनाने का वहां पर कोई प्रश्न नहीं। ऑन साइड पर 30 गज के दायरे में सिर्फ एकमात्र फील्डर है मिशेल सेंटनर के रूप में, जो कि मिड विकेट क्षेत्र में है। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को हल्के से पुश किया ऑफ साइड में, ग्लेन फिलिप्स बाईं तरफ जाकर गेंद को फील्ड कर पाते और गेंद को उठा पाते। इस बीच दौड़कर एक रन बहुत तेजी के साथ चुरा लिया। ओवर की समाप्ति हुई, भारत का स्कोर 16 ओवर की समाप्ति के बाद 121, एक विकेट के नुकसान पर। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. 121 for 1 in 16 overs India. Kohli on 18. He's on strike. Shubman Gill on 53 of 45. And it's going to be Michel Santner from the pavilion end bowling to Virat Kohli. Santner bowls. This time pushes it through the air. Virat Kohli forward in defence. No addition to the score. 121 for 1. Run rate 7.48. The only wicket to fall is that of captain Rohit Sharma, who was out for 47. 47 of 29 deliveries. In the meantime, this ball has been played away towards the cover region for a quick cheeky single by Virat Kohli, who takes his individual score now to 19 of 24, and it's going to be Shubman Gill, 53 of 45, who's in strike. Rohit Sharma was out, caught in the deep as he tried to hoik Tim Southee over long off. This time the next delivery from Santner, giving Shubman Gill a little room outside the off stump, spinning away from the right-hander. He essays for a cut, but there is a field of station there at point and no addition to the score. Santner bowls again, and this time he's coming down the track, and a lofted shot over long on, all the way for a glorious 6. The 598th 6 of this tournament. Santner gave the ball a little air. He allowed the ball to spin away from him, waited for it, and then lofted it over long on for a huge towering 6. With that shot, Shubman Gill goes to 59 of 47 deliveries, and India galloping away in a 16 overs at 7.68 to 128 for 1. This Indian run machine, this floodgate of runs, New Zealand would want desperately to stop it. India, if they continue this way without the fall of any further wickets, might just outbat New Zealand in this crucial semi-final. And I'll tell you what, while in this Wankhede stadium, all the 33,000 of them, or most of all of the 33,000 would be cheering for an India win, there will be a few thousand spectators who would want a great contest first. And this time it's been cut away to this ball outside the off stump. The ball is speeding away to the third man boundary, all the way for 4 runs from the bat of Shubman Gill. No chance there for Williamson to retrieve that ball. The two fielders converging in it, and no chance whatsoever. This ball was played with such assurance. This cut shot, short arm, slap half cut. This time Chapman drives, and to the right of Santner, to the left of Santner rather, and Santner fields. No addition to the score, 132 for 1 at the end of 17 overs. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC।
मिशेल सेंटनर आमतौर पर काफ़ी किफ़ायती नज़र आते हैं, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हैं, काफ़ी सटीक गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज भारतीय बल्लेबाजों ने उनका मुकाबला बखूबी किया है। अब तक 4 ओवर में 29 रन उनकी गेंदों पर बनाने में कामयाब रहे हैं विराट कोहली और साथ ही साथ शुभमन गिल, और उनका इकॉनमी आप देखें तो 7 से ऊपर का है, 7.25 का पहले 4 ओवर में। गेंदबाजी में क्या यहाँ पर एक और परिवर्तन? जी हाँ, रचिन रविंद्र के स्थान पर अब ग्लेन फिलिप्स गेंदबाजी के मोर्चे पर नजर आ रहे हैं, और ग्लेन फिलिप्स कहना होगा कि इस विश्व कप में काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किए गए हैं कप्तान केन विलियमसन के द्वारा। संभवतः एक दिवसीय मैचों में उन्होंने अपने पूरे करियर में इतनी गेंदबाजी नहीं की है जितनी कि इस विश्व कप के दौरान उन्होंने की है। फील्ड की जमावट इस समय की जा रही है, पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है वहां पर विराट कोहली 19 के व्यक्तिगत स्कोर पर अर्धशतकीय साझेदारी की यदि बात करें दूसरे विकेट के लिए तो हमारे स्कोरर बता रहे हैं किशोर लावने की 50 रनों की जो साझेदारी हुई थी दूसरे विकेट के लिए वो 46 गेंदों का सामना करने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई थी। इसी बीच अगली गेंद नए ओवर की और कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद की पिच तक पहुंचे, गेंद को वहां पर ड्राइव जरूर किया था लेकिन मिड विकेट क्षेत्र में लंबे ऊंचे कद के सेंटनर मौजूद, गेंद को उन्होंने फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया। मीडिया छोर की तरफ से ग्लेन फिलिप्स एक बार फिर से तैयार, क्रीज के कोने से ये गेंद ऑफर मिडल स्टंप की तरफ आती हुई इस गेंद को बैकफुट पे जाकर पुश किया, लॉन्ग ऑन की दिशा में खड़े हुए फील्डर की तरफ मार्क चैपमैन वहां पर मौजूद हैं हमारे कमेंटेटर बॉक्स के दाईं तरफ, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, थ्रो किया विकेट कीपर की तरफ, लेकिन तब तक चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाज 1 रन के लिए अपने छोर को बदल चुके थे। इस 1 रन की मदद से भारत का स्कोर बढ़कर के अब 133 एक विकेट के नुकसान पर, जिसमें 14 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। ग्लेन फिलिप्स तैयार होते हुए हमसे दूर जाते हुए छोटा बॉलिंग मार्ग बैकफुट पे जाकर गेंद के टर्न होने के साथ ही मोड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन दौड़कर पूरा किया। रचिन वहां पर गेंद को फील्ड करें और थ्रो करें टॉम लैथम के दस्तानों की तरफ, दूसरे रन के लिए पहले मन जरूर बनाया था लेकिन जब देखा कि हवा में बहुत तेजी के साथ तैरता हुआ थ्रो पहुंच रहा है विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ तो अपने इरादे को बदला, 1 रन से ही संतोष करना पड़ा। इस 1 रन के साथ भारत अब 134 एक विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली के लिए समय फील्ड प्लेसिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता हुआ स्क्वायर लेग अंपायर के थोड़ा आगे की तरफ एक फील्डर को तैनात किया गया है, ऑफ साइड से हटा करके ऑफ साइड में 30 गज के दायरे के अंदर इस समय शॉर्ट थर्ड मैन एक खिलाड़ी वहां पर कवर पॉइंट और एक एक्स्ट्रा कवर पर। इसी बीच अगली गेंद और इस बार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मोड़ दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद वहां पर फील्ड कर ली जाएगी सीमा रेखा के अंदर करीब करीब 1 या 2 गज, लेकिन बल्लेबाजों को इस बीच 2 रन पूरे करने का अवसर मिल जाएगा। इन 2 रनों के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के अब 136 एक विकेट के नुकसान पर। इस विश्व कप में न्यूजीलैंड का ये 1वां मैच है अगर विश्व कप के इतिहास की बात करें, कुल मिलाकर के अब तक उन्होंने 100 मैच खेले हैं विश्व कप में जहां तक न्यूजीलैंड की टीम का सवाल है। इसी बीच अगली गेंद और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए फिर से गेंद को मोड़ दिया, रचिन वहां पर मौजूद है, 1 रन जरूर मिल जाएगा बल्लेबाजों को। इस 1 रन की मदद से भारत का स्कोर बढ़कर के 137 एक विकेट के नुकसान पर। न्यूजीलैंड ने इससे पूर्व जो 99 मुकाबले खेले हैं विश्व कप में अलग अलग संस्करणों में, उसमें उन्होंने 59 मुकाबले जीते हैं और 39 में उन्हें पराजय का मुंह देखने को मिला था। लेकिन हाल फिलहाल के संस्करणों में उनका प्रदर्शन निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा रहा है। न केवल 2015 बल्कि 2019 में भी वो रनर्स अप रहे थे। अगली गेंद ग्लेन फिलिप्स की और इस बार इस गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, एक आसान से रन के लिए। इसके साथ ही ओवर की भी समाप्ति होती हुई भारत का स्कोर 138 एक विकेट के नुकसान पर। जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेड। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार, तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। So 138 for 1. We're into power play 2, 18 overs gone. Virat Kohli on 23, Shubman Gill on 65. And it's going to be Santner from the far end, and facing him is Shubman Gill. The field for Shubman Gill, there is a man at the back foot of point.
In fact, one at a short third man, another man back for a point. There's a cover. Santner bowls to Gill. Gill drives. The man stationed at the cover region quickly converges in the ball and prevents any run from being taken. Run round the wicket comes Santner to Shubman Gill. This time drops it short, pushing it through the air, and it's fielded there at the point region by Phillips, and it's being relayed back to the bowler. So there is a man at the fine leg region, a man at wideish mid-on, as Shubman Gill this time half drives, half cuts the ball away towards the deep point region. It's fielded there, a single will accrue, and with that Shubman Gill's score moves to 66, and Kohli is on 23, 139 for 1, pardon, in 18.3 overs. Santner bowls this time, pushing it through the air, and has been driven nicely by Kohli. Kohli is in no hurry. This is the kind of knocks he's been playing. He's been very happy to get his eye in, played the sheet anchor, play deep, and take the ones and twos, keep the scoreboard rotating. There are enough stroke players in this Indian lineup, and allowing them to play their shots. As this time Shubman Gill to this ball, which Santner had given some air and some room outside the off stump, cuts it, half drive, half cut, a vertical bat finishing horizontally, takes him to that his individual score to 67. As this time it's Virat Kohli who is driving away, and just for a single though to the long on region. He's happy doing this as Virat Kohli. He's not particularly bothered. He's already the highest run getter in this World Cup, and he's happy with that strike rate of 88. End of 19 overs, 142 for 1. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। केन विलियमसन जानते हैं कि विराट कोहली वो बल्लेबाज हैं जो कि 2022 से लेकर इस विश्व कप की शुरुआत तक बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजों के सामने बहुत सहज महसूस नहीं कर पाए हैं, और 8 मरतबा इस दौरान वो आउट हुए हैं बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजों के सामने, जिसकी वजह से संभवतः एक छोर से लगातार उन्होंने सेंटनर को लगाया हुआ गेंदबाजी के मोर्चे पर। ग्लेन फिलिप्स एक बार फिर से तैयार हमारे नज़दीक वाले छोर की तरफ से, और पहली गेंद का सामना करते हुए विराट कोहली फ्रंट फुट पे जाकर गेंद की पिच के नज़दीक पहुंचकर इस गेंद को खेला वहां पर था, लेकिन जेम्स नीशम मौजूद गेंद को उन्होंने फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया। एक बार फिर से ग्लेन फिलिप्स तैयार हमारे नज़दीक वाले छोर से। इस विश्व कप में अब तक 6 विकेट उनके नाम के आगे दर्ज हैं। दाएं हाथ से ये गेंद लोअर ट्रेजेक्ट्री की गेंद को गति देना चाहते थे और गेंद को वहां पर खेल दिया लॉन्ग लेग की दिशा में। 1 रन आसानी के साथ जुटा लेंगे विराट कोहली। इस 1 रन की मदद से भारत का स्कोर बढ़कर के अब 143 1 विकेट के नुकसान पर, और विराट कोहली का व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 26 32 गेंदों का सामना करने के बाद, जिसमें 2 चौके शामिल है। लगभग 80-81 के आसपास का स्ट्राइक रेट है विराट कोहली का, जबकि लगभग 121 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे शुभमन गिल। अगली गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल, बल्ला कौंधा और गेंद बर्बाद बढ़ती हुई सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। जैसे ही देखा शुभमन गिल ने कि इस बार मौका है, ग्लेन फिलिप्स ने वहां पर गेंद को फ्लाइट किया था, गेंद की पिच के नज़दीक जाकर इस गेंद को बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल करते हुए सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। 78 मीटर दूर जाकर ये गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में पहुंची हुई थी 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से भारत का स्कोर अब 149 1 विकेट के नुकसान पर। ग्लेन मैक्सवेल के सामने एक बार फिर से शुभमन गिल फ्रंट फुट पे आकर हल्के से गेंद को वहां पर पुश कर दिया। मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। 1 रन से
संतुष्ट रहेंगे इस अवसर पर और इस 1 रन के साथ ही भारतीय पारी के 150 रन भी पूरे होते हुए 1 विकेट के नुकसान पर। और अब तक का शानदार साझेदारी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में हुई है। कुल मिलाकर 79 रनों की साझेदारी 78 गेंदों का सामना करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत के लिए बनाई है दूसरे विकेट के लिए। क्लेन मैक्सवेल की अगली गेंद, इस बार बैकफुट पे जाकर हल्के से गेंद को पुश किया, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर वहां पर फील्डर मौजूद। सेंटनर गेंद को उन्होंने फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को इसके साथ समाप्त कर दिया। ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर, 2 खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक वहां पर नजर आ रहे हैं। टिम साउदी बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की दिशा में हमारे कमेंटेटर बॉक्स के नीचे। विराट कोहली अपराइट स्टांस के साथ तैयार इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। और जैसे ही देखा कि गेंद गुड लेंथ पर है, फ्रंट फुट पे जाकर इस गेंद को हल्के से पुश कर दिया। फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया ग्लेन मैक्सवेल ने। ओवर की समाप्ति हुई भारत 150 1 विकेट के नुकसान पर। कोई भी पैक्ड सामान लेने से पहले एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन आदि जानकारी अवश्य देखें, क्योंकि जागरूक उपभोक्ता मतलब स्वस्थ उपभोक्ता। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. Is a drinks break on, 150 for one of 20 overs. Virat Kohli is in 26 and Shubman Gill is on a well-made 74 already. Looking dangerous is Shubman Gill. His 74 runs have come off 57 deliveries, 91 minutes at the crease, 8 hits for a boundary, 8 boundaries and 3 over boundaries. Shubman Gill, 26 dots, and he's looking as good as he always looks at his best. Virat Kohli, on the other hand, playing the shit anchor's role, playing the role that he's been playing consistently throughout the World Cup. He doesn't want to get off into a flurry of shots. He chooses, takes his time, settles down, plays for the ones and twos, plays the sheet anchor role. He knows he needs to stay deep, and that is what he has done time in, time out in this World Cup. A World Cup which therefore resulted in him getting 594 runs in this edition before this match began. So a bowling change, is it, from the other end? Santner as Shubman Gill waits. Santner round the wicket, bowls to Shubman Gill. Shubman Gill drives, finds that gap to the left of Santner and mid-off towards the long-off region. Gently ambles across for a single, moves to 75 of 58. New Zealand at 151 for 1. And I think by this time the ardent Indian fans, the faint-hearted Indian fans, the fans who have hope and despair fluttering in between, their nerves would have been settled, as India definitely look well entrenched in this match as Santner bowls this time to Virat Kohli. Virat Kohli forward in defence, bat and pat close together to this ball pitched on the off and middle stump. A fullish length delivery, allowing the ball to trickle down. Santner once again round the wicket from the pavilion end, and he comes wide of the crease, bowls to Virat Kohli. Virat Kohli essaying, trying to free his arms to this delivery which is coming into him, and with straighter one with the arm, and tries to play it away out on the offside. Doesn't quite succeed in finding the gap. Virat Kohli, 26 of 36 deliveries. Facing Santner. Santner from wide of the crease, bowls this time straying down the leg a little, and all Virat Kohli does is to tuck it away, gently tuck it away. The intention was never to go for a big shot. The intention was to keep the strike rotating, rotates the strike, ambles across to the other end, gives Shubman Gill the opportunity to have a go at Santner. For the 5th ball in this over, he bowls to Santner, pushes it through the air, rocking Shubman Gill onto the back foot this time. Off the back foot, bat and pat close together. He plays it out to the square on the offside towards where the extra cover fielder is. No runs for the last time in this over. Santner bowls, digs it in short, bowls it short, pushes it through the air,
enough time for Shubman Gill to just push it away, push drive towards the Whitish Midland region for a single that takes his individual score to 76. 27 Kohli, 153 for 1 India after 21 overs. दिस ओवर इज ब्रॉट टू यू बाय ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। ढोल नगाड़ों के साथ लगातार यहाँ पर जो समर्थक दर्शक हैं भारतीय बल्लेबाजों का मनोबल बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने भी अभी तक किसी किस्म का कोई निराशा उनको नहीं दी है। दोनों बल्लेबाजों ने अब तक एक बढ़िया साझेदारी दूसरी विकेट के लिए कर ली है। 82 रनों की 76 गेंदों का सामना करते हुए विराट कोहली खेल रहे हैं 27 के व्यक्तिगत स्कोर पर, जबकि शुभमन गिल बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए फिलहाल पहुंच चुके हैं 76 के व्यक्तिगत स्कोर पर, जिसमें 60 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 8 चौके और 3 छक्के दागे हैं। तो नज़दीक वाले छोर पर एक बार फिर से ग्लेन फिलिप्स गेंदबाजी के मोर्चे पर, देखना है कि क्या कुछ कर पाते हैं अपने इस ओवर में। पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है वहां पर शुभमन गिल के लिए गेंद क्रीज के कोने से मिडल रोलर स्टंप पर आती हुई गेंद की पिच के नज़दीक पहुंचकर हल्के से पुश किया। ऑन साइड पर सेंटनर वहां पर मौजूद, गेंद को दाईं तरफ जाकर उन्होंने फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को यहां पर समाप्त कर दिया। शुभमन गिल घुटनों को थोड़ा सा मोड़ते हुए स्टांस लेते हैं, किसी भी अगली गेंद और कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पुश किया था लॉन्ग ऑन की दिशा में। मार्क चैपमैन वहां पर मौजूद हैं। 1 रन से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा शुभमन गिल को। इस 1 रन की मदद से भारत का स्कोर बढ़कर के अब 154, 1 विकेट के नुकसान पर। साझेदारी लगातार एक बड़ा आकार लेती हुई नजर आ रही है शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर। अगली गेंद और इस बार बैकफुट पे जाकर इस गेंद को खेल दिया वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन की दिशा में। फिर से मार्क चैपमैन वहां पर दाईं तरफ जाकर गेंद को फील्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन के साथ भारत अब 155, 1 विकेट के नुकसान पर, और विराट कोहली का व्यक्तिगत स्कोर हुआ इस 1 रन की मदद से 29 रन। ग्लेन फिलिप्स की ये गेंद और इस बार पूरा सम्मान देते हुए ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को पैड और बैट साथ मिलाकर सुरक्षात्मक ढंग से खेला, किसी किस्म का जोखिम उठाने का प्रयास नहीं किया। और शुभमन गिल बहुत अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जोखिम भरे शॉट नहीं खेल रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, और यही काम विराट कोहली भी कर रहे हैं। और शुभमन गिल को जब भी कोई कमज़ोर गेंद मिलती है तो उस पर प्रहार करने से भी नहीं चूकते। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद की पिच के नज़दीक पहुंचे, गेंद को हल्के से पुश कर दिया था वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, ये देखते हुए कि फील्डर वहां पर काफ़ी पीछे है। मार्क चैपमैन के रूप में चहलकदमी करते हुए इस 1 रन को पूरा किया। भारत का स्कोर 156, 1 विकेट के नुकसान में, जिसमें 14 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। अंतिम गेंद का आना बाकी है ग्लेन फिलिप्स के इस ओवर की अगली गेंद क्रीज के फिर से कोने से, और फिर से गेंद के पिच के नजदीक पहुंचकर उस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति, भारत का स्कोर 157, 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया स्क्वायर की दिशा में, गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर। सुनना न भूलें, आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। So India 157 for 1, 22 overs gone. Boult none for 29, Southee none for 1 for 31, Santner none for 36, Ferguson none for 30. So those are how the New Zealand bowling figures read. As this time he bowls and has been driven handsomely by Virat Kohli towards the extra cover region. Santner's delivery, full pitched up one, and Virat Kohli will move into the 30s now with that shot, and that will bring on strike Shubman Gill. 158 for 1. Now this score 158 for 1 would have calmed a lot of Indian nerves
that unless something dramatic happens, India may not lose this semi-final after all. Too early to say, but that's how they might be feeling. And this time, to this delivery, which is pitched outside the off-stump, Shubman Gill opens the face of the bat and drives it away towards the extra cover region for a single. That will bring in strike Kohli again. He's on 30 of 40 deliveries, 159 for 1 as Kohli waits. This time, pushed through the air. Kohli this time has got into that pull shot. Short it was, and pulled away to the mid-wicket region, all the way for 4 runs, all along the ground. This shot was played with impunity, with absolute authority from the one who can only give a masterclass when he gets going, Virat Kohli. What a shot it was. Completely in control. The arms rolling over to keep the ball all along the ground. Santner bowls once again, this time rocking Kohli onto the back foot. Kohli rocks onto the back foot and drives with a flick of the wrist towards mid-on. He takes his individual score to 35. That will bring in strike Shubman Gill, who's on 79, 164 for 1. We're into the 23rd over of the Indian innings. India won the toss and decided to bat first. And the whole idea was to post a total and make it difficult for New Zealand, make it, sort of outweigh the opposition, outwit the opposition by the target that you have to chase. And from the look of it, 164 for 1 in just the 23rd over running. India are indeed poised for a big total here. खेल कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुका हुआ है आनंदो, ये देखते हुए कि वहाँ पर बाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव है शुभमन गिल के। टीम के फिजियो नितिन पटेल वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम दर्शक ये कामना करेंगे कि बहुत जल्द वो यहाँ पर ठीक होकर पारी को जारी रखें और भारतीय टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ ले जाएं। अब तक उन्होंने आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। 79 रन अब तक उनके बल्ले से निकले हैं 65 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के हैं। लगभग 121 का स्ट्राइक रेट है अब तक जो 79 रन उन्होंने बनाए हैं। और इस युवा बल्लेबाज की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। इस कैलेंडर ईयर में, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं आनंदो, कि सबसे ज़्यादा रन बनाने का श्रेय वो हासिल कर चुके हैं। इस विश्व कप के इस मुकाबले से पहले, सेमीफाइनल मुकाबले से पहले उनके बल्ले से इस कैलेंडर वर्ष में 1500 रन निकले थे, यानी कि कुल मिलाकर 1579 रन वो इस विश्व कप में, इस कैलेंडर ईयर में अब तक बना चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितनी अच्छी फॉर्म में है शुभमन गिल। लेकिन इंतज़ार है उनके समर्थक दर्शकों को कि विश्व कप में भी अपना जलवा बिखेरते हुए वो यहाँ पर अपना शतक पूरा करें। फिलहाल भारत के फिजियो नितिन पटेल इस समय वापस जा रहे हैं। शुभमन गिल भी उनके साथ साथ पवेलियन की तरफ अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से भारत के लिए और शुभमन गिल के लिए और उनके चाहने वालों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं आने दो। Yes, Shubman Gill's departure, and he doesn't look good. He's sort of limping his way, though without any shoulder support. But looks like it may be difficult for him to come out and bat. So, but India 161 for 1, 164 for 1 are still poised in a nice pace. And out comes in the middle Shire, the man who is beginning to make the number 4 position his own, Ashish. Shreyas Iyer now generally sealing his position as India's authentic number 4 after, of course, Virat Kohli has moved to the number 3 position. जी, और खासतौर से जिस तरह से नीदरलैंड के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने 128 रनों के नाबाद पारी खेली, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। और अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो 2011 के विश्व कप के बाद ये संभवतः पहला अवसर है जबकि नंबर 4 पर किसी बल्लेबाज ने विश्व कप में भारत के लिए शतक जड़ा। Thank you for that piece of stats. And Ashish, as Shreyas Iyer is out in the middle. Shubman Gill retired hurt, 79. India, the Indian scorecard still reads 164 for 1. Shubman Gill, theoretically, on paper, by the rule book, can come out and bat again. 164 for 1. We are in over number 23.
Shreyas Iyer has just come in and he'll be facing Santner. There is a slip which has been positioned for Shreyas. There is a man at backward fine point, a leg man at position, cover, a man at the at sweeper cover mid-wicket, position. a mid-on. There is a man at the fine leg position, a man at mid-wicket, a mid-on for Shreyas Iyer, as this time round the wicket he bowls, and Shreyas Iyer trying to paddle, sweep or tuck it away towards the onside, doesn't succeed in getting the ball past the fielder there at fine leg, who runs a few yards to his right to pick that ball up. Santner once again round the wicket from wide at the crease, angling it to the right-hander. Shreyas Iyer will open a count to this ball, which is over pitched slightly, and opens the face of the bat, drives it away all along the ground to the long off region for a single. Shreyas Iyer on 1, Kohli on 35, India on 165 for 1 at the end of that over. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। श्रेयस अय्यर ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ धर्मशाला में पदार्पण किया था एक दिवसीय मैचों का जहां तक सवाल है, और इस विश्व कप के इस मुकाबले से पहले उन्होंने कुल मिलाकर 56 एक दिवसीय मुकाबले खेले हैं। 2222 रन अब तक उन्होंने बनाए हैं, लगभग 49 की औसत से। लेकिन इस विश्व कप में खासा अच्छा प्रदर्शन उनका रहा। 421 रन अब तक उनके बल्ले से निकले हैं, लगभग 70 की औसत से, जिसमें 1 शतक और साथ ही साथ 3 अर्धशतक शामिल हैं। विराट कोहली आईसीसी रैंकिंग में चौथे स्थान पर, गिल अभी रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर निकले हैं। आईसीसी रैंकिंग में वो पहले स्थान पर हैं, और श्रेयस अय्यर इस समय बीच मैदान पर हैं। देखना है क्या कुछ कर पाते हैं भारतीय टीम के लिए यहाँ पर विराट कोहली के साथ मिलकर। हमारे नज़दीक वाले छोर पर इस समय फर्ग्यूसन तैयार हैं अपने नए ओवर की शुरुआत करने के लिए। पहली गेंद, बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को दिशा दे दी। थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है सीमा रेखा के नज़दीक। हवा में तैरता हुआ थ्रो एक बाउंस के बाद पहुंचा टॉम लैथम के दस्तानों की तरफ, लेकिन तब तक आसानी के साथ दौड़कर वहां पर 1 रन पूरा कर लिया था बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के 166, 1 विकेट के नुकसान पर भारत का। विराट कोहली इस समय तैयार हो रहे हैं, और तमाम उनके समर्थक दर्शक निश्चित रूप से आज भी एक बड़ी पारी देखना चाहेंगे, और चाहेंगे कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर वो एक नया कीर्तिमान स्थापित करें शतकों का। सचिन तेंदुलकर के एक दिवसीय मैच में 49 शतकों की बराबरी तो वो कर ही चुके हैं। क्या यहाँ पर 50वां शतक लगा पाएंगे? फिलहाल अगली गेंद इस बार ऑफ द हिप्स, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को मोड़ दिया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर वहाँ पर तैनात है, लेकिन 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा विराट कोहली को। इस 1 रन की मदद से भारत का स्कोर अब 167, 1 विकेट के नुकसान पर। रनों की औसत रफ्तार की यदि बात करें तो लगभग 7.16 के आसपास मंडरा रही है इस समय फर्ग्यूसन अपने लंबे बॉलिंग मार्ग पर। और उनकी एक विशेषता है, मैंने जब भी उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखा है, कालो जूतों के साथ देखा है। अगली गेंद, और इस बार पटकी हुई गेंद, शॉर्ट आर्म पुल करना चाहते थे, गेंद हवा में है, लेकिन एक बाउंस के बाद वहां पर लॉन्ग लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। खतरे जैसी कोई बात नहीं थी वहां पर। जानते थे विराट कोहली कि लॉन्ग लेग पर एक फील्डर तैनात है, और ऐसे में उन्होंने पूरी शक्ति के साथ वो स्ट्रोक नहीं खेला था और वहां पर शॉर्ट आर्म पुल किया था। तो इस रन की मदद से भारत का स्कोर 168, 1 विकेट के नुकसान पर। तैयार हैं विराट कोहली एक बार फिर से। श्रेयस अय्यर थे दरअसल वहां पर। अगली गेंद लेकर तैयार विराट कोहली के लिए, और इस बार गेंद को हल्के से टैप कर दिया। ऑफ साइड में दौड़कर रन लेना चाहते थे, लेकिन बहुत तेजी के साथ गेंद पर झपटे वहां पर केन, बल्कि क्लेन फिलिप्स से वहां पर, और रन बनाने की तमाम जो योजना बन रही थी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के मन में, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ऑफ साइड में 3 फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर। क्षेत्र रक्षण अब तक काफ़ी उच्च स्तर का रहा है इस मुकाबले में, जहां तक न्यूजीलैंड की टीम का सवाल है, और पूरे विश्व कप में भी अपने क्षेत्र रक्षण से काफ़ी प्रभावित किया है। न्यूजीलैंड की टीम मुश्किल परिस्थितियों से उभरना जानती है, और न केवल उभरना जानती है बल्कि प्रतिद्वंदी टीमों को चुनौती देना जानती है। अगली गेंद, और इस बार लेग स्टंप की तरफ भटकती हुई गेंद को खेल दिया फाइनल की दिशा में, गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए विराट कोहली के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। इस चौके की मदद से विराट का व्यक्तिगत स्कोर बढ़कर के पहुंच चुका है 40, और भारत इस समय
172 एक विकेट के नुकसान पर 16 चौके और 7 छक्के अब तक लगाए जा चुके हैं भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा इन 172 रनों को बनाते बनाते। फेर्ग्यूसन एक बार फिर से तेज रफ्तार से हमसे दूर जाते हुए, और इस बार ये गेंद थोड़ी सी ओवर पिच थी, गेंद को वहां पर पुश कर दिया, लेकिन बढ़िया फील्डिंग 30 गज के दायरे के अंदर कप्तान केन विलियमसन की, जहां पर 4 रन हो सकते थे, वहां पर सिर्फ 1 रन दिया भारतीय बल्लेबाजों को, और इसके साथ ही साथ वहां पर ओवर की भी समाप्ति होती हुई भारत का स्कोर 173 एक विकेट के नुकसान पर। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. I was talking about India's new number 4, who's cementing his place in the side, Shreyas Iyer. 51 matches in his career so far, an aggregate of 2,222. Before this, a highest of 128, which came recently against Netherlands, and an average of 49.38. And what's even better, a scoring rate of 99.42 speaks volumes about this man's ability. And of course, we have seen in this World Cup his emerging confidence as it's Ravindra bowling from the far end, and quietly Kohli plays that ball out on the offside. Rachin Ravindra bowls, and this time it's been driven towards the long off region by Kohli for a single, though all along the ground. Kohli is happy playing the singles, the ones and the twos, keeping the scoreboard rotating, giving the opportunity to the younger batters who are all in very, very good form to play their strokes. As Shreyas Iyer waits now, Ravindra from wide of the crease bowls to Shreyas Iyer. Shreyas Iyer drives handsomely all the way to the long off region. Boult there, who fields, throws in the return to Latham. No addition to this, one more to the total, taking India to 175 for 1 now. Very, 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 very comfortably placed. From here, it would look the Indians might be harbouring the thoughts of having a shy at a 400-run total. Rachin Ravindra bowls, this time pushed through the air, faster one, and has been quietly played away. Open face to the bat towards the offside, and overthrows result in yet another run. So India will take them as they come. They don't mind. This was played quietly for a single, and this time the throw coming in to Latham off the mark, allowing the batsman to come back therefore for this second run. Rachin Ravindra bowls, this time slightly flighted delivery, and drawing Virat Kohli onto the front foot. He drives, not for runs once again. There is a man stationed in a rather short mid-off position. You can't call it a silly mid-off really, but it is a very short mid-off, maybe just to the left of the wickets there at the other end. And this time it's been played away, piercing the gap towards the extra cover for a single. Does Shreyas Iyer. He moves to 4, Kohli to 45, India to 178 for 1 at the end of the 25th over. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। की पारी के रनों की रफ्तार इस समय 7.12 रन प्रति ओवर है, लेकिन पिछले 5 ओवर में अगर आप देखें कि किस तरह से पारी आगे बढ़ी है, तो पिछले 5 ओवर में मात्र 28 रन बनाए हैं, यानी 5.60 रन से बल्लेबाजों ने रन जोड़े हैं। फर्ग्यूसन एक बार फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार क्रीज के कोने से गेंद
ऑफ स्टंप पर आती हुई इस गेंद को विराट कोहली ने फ्रंट फुट पे जाकर हल्के से पुश किया। ऑफ साइड में सेंटनर तेजी के साथ गेंद की तरफ झपटे और गेंद को उन्होंने फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को इसी के साथ समाप्त करते हुए भारत का स्कोर 178, 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है भारत इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में 2023 के ICC पुरुषों के विश्व कप में, जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जा रहा है और उसका प्रसारण आप आकाशवाणी पर सुन रहे हैं। अगली गेंद फर्ग्यूसन की और इस बार मिडल और लेग स्टंप पर आती है। उस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन के लिए दौड़ा, दूसरे रन के लिए पलटेंगे बहुत तेजी के साथ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इससे पहले कि थ्रो पहुंचे टॉम लैथम के दस्तानों की तरफ, विराट कोहली सुरक्षित क्रीज में पहुंच गए थे और इस अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट की तारीफ यहां पर करतल ध्वनि के साथ तमाम क्रिकेट के जानकार दर्शकों ने की। 2 रनों के साथ भारत का स्कोर अब 180, 1 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली के लिए ऑफ साइड में 30 गज के दायरे के अंदर 3 फील्डर और ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर। फर्ग्यूसन की अगली गेंद, इस बार मिडल और लेग स्टंप की गेंद को फ्रंट फुट पे जाके हल्के से पुश कर दिया, लेकिन 30 गज के दायरे के अंदर मिड ऑन की पोजीशन पर फील्डर तैनात, रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त करते हुए अच्छा क्षेत्र रक्षण जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, अच्छे पूर्वानुमान के साथ गेंदों को फील्ड करने में अब तक किसी किस्म की कोई कोताही बरते हुए नजर नहीं आए हैं न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ी। फर्ग्यूसन के इस ओवर की अगली गेंद मीडिया छोर की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। फर्ग्यूसन के कोटे का यह 5वां ओवर है। अगली गेंद और इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहते थे, क्या गेंद बल्ले पर टकराई, आगे निकले थे रन लेने के लिए, लेकिन बहुत तेजी के साथ वहां पर गेंद पर झपटे और स्टंप्स की तरफ थ्रो किया था इस उम्मीद में कि शायद गेंद स्टंप पर टकराए और विराट कोहली को वहां पर पवेलियन का रास्ता नापना पड़ जाए। लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पर न केवल विराट कोहली की बल्कि साथ ही साथ उस अच्छे क्षेत्र रक्षण की। मार्क चैपमैन थे जिन्होंने वो प्रयास वहां पर किया था। फर्ग्यूसन एक बार फिर से तैयार होते हुए, गेंद और बल्ले के बीच में इस समय कशमकश जारी है। इस बार पटकने की कोशिश, लेकिन बहुत ज्यादा गेंद में उछाल नहीं था। क्या गेंद वहां पर वाइड होगी उसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। अंतिम गेंद का आना बाकी है। फर्ग्यूसन इस समय अपने तरकश में तमाम तीरों को निकाल करके आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं कि इस जोड़ी को अगर अलग करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद का आना बाकी है। एक अच्छा ओवर न्यूजीलैंड के दृष्टिकोण से अब तक सिर्फ 2 रन आए हैं दूसरी गेंद पर, उसके अलावा बाकी तमाम जो गेंदें हैं वो डॉट बॉल। अगली गेंद इस बार कलाइयों को इस्तेमाल करते हुए गेंद को मोड़ा है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है रचिन के रूप में। थ्रो पहुंच रहा है टॉम लैथम के दस्तानों के पास, लेकिन तब तक 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को भी बदला और भारत का स्कोर इस 1 रन की मदद से 181, 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर। 4 रन, खाते की शुरुआत भारत की चौके के साथ। ICC विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर ICC विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। $81 for 1. Another partnership just about beginning to bud for India. India would need this partnership between Shreyas Iyer and Kohli to offer them another flurry of runs which will take them maybe towards the 250 mark. Okay, we are at the 26th over. 26 overs have been bowled, 181 for 1. India solidly entrenched as the next ball has been played away towards the cover region and will give Virat Kohli a single as he opens the face of the bat and plays it, runs it down towards the extra cover region for a single. Takes Virat Kohli on to 49 now, 1 short, and Shreyas Iyer on 4. Rachin Ravindra bowls to Shubman Gill. Shubman Gill drives, not for runs.
अभी आप सुन रहे थे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में खेले जा रहे एक दिवसीय पहले सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकेंगे अब खास खबरों के बाद। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। प्रचार थमने के पहले मुख्य पार्टी भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों के कई शीर्ष नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। प्रदेश में सभी 230 Well played, covering the line of the ball. Feel the bowler should be around that good length area more. But that's going to be for all right. Sweet timing. That ball deserved a boundary. Magnificent striking from the batsman. भारत की तरफ से अब तक 2 Turned away अर्धशतक for a लगाए गए single. हैं। शुभमन गिल ने अपने 50 रन 41 गेंदों का सामना करते हुए पूरे किए थे, जबकि विराट कोहली ने अभी 50 रन पूरे किए हैं 59 गेंदों It's का a full सामना house करते here हुए, and जिसमें what an 4 चौके atmosphere we've शामिल had हैं। for this match. अगली गेंद फर्ग्यूसन के इस ओवर की और इस बार बल्ले का मुंह खोलते हुए दिशा देना चाहते थे, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर चौकन ने गेंद को उन्होंने फील्ड किया। आगे Very की तरफ good running झपटते between हुए the गेंद तक wickets. पहुंचे थे और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को इसी के साथ समाप्त कर दिया। भारत का स्कोर 27.1 ओवर की समाप्ति के बाद 194 एक विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है 50 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करते हुए। फर्ग्यूसन एक बार फिर से मीडिया छोर की तरफ से लंबे डग बढ़ते Headstand हुए taken. That's very good bowling. ये गेंद और इस बार इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेल दिया है Batsman डीप takes the बैकवर्ड long पॉइंट की walk दिशा back में। to the फील्डर वहां pavilion. पर मौजूद है। एक बाउंस के बाद थ्रो पहुंचा टॉम लैथम के दस्तानों की तरफ, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज सहजता के साथ एक रन के लिए अपना छोर बदल चुके He थे। knew it from the और इस moment he एक hit रन it. की मदद से He had भारत got का it स्कोर all अब wrong. 195 एक विकेट के नुकसान पर। 17 चौके और 8 छक्के अब तक भारत के बैटर्स के द्वारा लगाए जा चुके हैं। न्यूजीलैंड की टीम And the batting power play कप्तान comes केन to an विलियमसन end. ने अब तक कुल मिलाकर 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, लेकिन सफलता सिर्फ टीम सऊदी को मिली है, जबकि उन्होंने भारत के कप्तान रोहित शर्मा का विकेट हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। इस बार लेग स्टंप की तरफ हटते हुए इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन केन विलियमसन 30 गज के दायरे के अंदर मौजूद गेंद को उन्होंने फील्ड किया अपने दाईं तरफ जाकर और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को वहां पर समाप्त कर दिया। Well, that is glorious, absolutely glorious, perfect timing. स्ट्रोक भी लगाए जाए। अब तक जो 14 रन बनाए हैं उसमें एक चौका और एक छक्का शामिल है। फर्ग्यूसन की अगली गेंद का सामना करने के लिए That's an amazing shot. एक बार फिर से तैयार Beautiful timing. अपने 14 के व्यक्तिगत स्कोर पर। नीदरलैंड के खिलाफ भारत ने अपने विश्व कप के अंतिम लीग मुकाबले में Good shot for a single. कुछ शानदार रन आते हुए देखे थे। 128 रन बनाए थे नाबाद रहते हुए 96 गेंदों का सामना करने के बाद। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेल दिया वाइडिश मेडॉन की दिशा में। Looks like he और टीम enjoys सऊदी space की on the वहां ball. पर तारीफ करनी Looks more होगी कि बढ़ती confident उम्र के with the space on the बावजूद ball. जिस चपलता के साथ दाईं तरफ जाकर गेंद को उन्होंने फील्ड किया, Turned away क्योंकि for a अन्यथा single. 4 रन हो सकते थे, उसे सिर्फ 1 रन तक सीमित रखा।
इस एक रन की मदद से श्रेयस 15 पर और भारत का स्कोर 196, 1 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली के लिए अगली गेंद करने के लिए तैयार, मन में ताना बाना बुनते हुए कि किस तरह से इस खिलाड़ी का विकेट हासिल किया जा सके ताकि भारत के लिए कुछ परेशानियां पैदा की जा सके, लेकिन विराट कोहली के मंसूबे बिल्कुल अलग। बैकफुट में जाकर इस गेंद को हल्के से पुश किया, एक बाउंस के बाद गेंद पहुंची थी सेंटनर के हाथ में, रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं। फर्ग्यूसन के इस ओवर की यदि बात करें तो अब तक इस ओवर के दौरान पहली 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन आए हैं, 2 सिंगल्स की मदद से। दूसरी और चौथी गेंद पर ये सिंगल लेने में भारत के बैटर्स कामयाब हुए थे। विराट कोहली तैयार होते हुए एक बार फिर से पूरी एकाग्रता हासिल करते हुए ऑफ साइड की फील्ड प्लेसिंग पर एक निगाह दौड़ाई। फर्ग्यूसन की अगली गेंद और इस बार इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति हुई, भारत 197, 1 विकेट के नुकसान पर 28 ओवर की समाप्ति के बाद। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. Well, 197 for one of 28 overs and run rate 7.04. Kohli is on 52, Shreyas Iyer is on 15. And it is usually said by the time and if you've got wickets in hand, 8 or more wickets in hand, by the time you reach your 30th over, you generally manage to double that score. So is India looking at a 400 plus total here? They might as well, with some hope and some confidence in their batting lineup. Kohli waits now. And it's going to be... It's a full house here, and what an atmosphere we've had for this match. Round the wicket, Boult to Kohli, over the head of the extra cover fielder. The man, over the long off fielder, all the way for 4 runs. Kohli at his controlled, aggressive best. Controlled aggression. This must be hurting the captain. He needs his bowler to be more disciplined with his lines. Clear the field and finding that's nasty. Right into the body. Infield, so to say. Not an infield really, it was a long off fielder. There is a little bit on the surface for the bowlers. It's also good for batting. And the ball fell well behind that fielder to speed away for 4 runs. And Boult once again comes in. Tremendous hit this. That's a crowd catcher. That's a 6. Doesn't quite manage to get hold of it and plays it away rather tamely towards the mid-wicket region as Boult walks back to the top of his bowling run up 56. I tell you what, that shot looks even better in the replay. Lovely timing. Today's standards, but this is important in a team which has a galaxy of stroke makers. I tell you what, the slow ball won't be a bad option on this pitch. Been cut out for him. He needs to be there. He needs to bat deep, and this time he drops his bat, just pushes that the ball struck away, beautifully. Terrific shot that. Region for a single. He'll take his individual score to 57, and India to pass 200, 202 for 1. There's such a wonderful crowd in to watch their favourite players. Was at when 71 Rohit Sharma went. And that is glorious. Perfect timing. So we're still on 203 for 1, and one more single accrues of the bat of Shreyas Iyer. He plays it away out in the offside just for a single, and we're into over number 29 here. 203 for 1 at the Wankhede, the semi-final clash between India and New Zealand. Walking back to the top of his bowling run-up is Boult as the shadows beginning to lengthen here at the Wankhede Stadium. Bowls this time, and outside the off-stump, foolish length delivery, and Kohli is quite happy, quite content to play it forward and play it quietly out in the offside. The Indians should be in no hurry. They know if they keep the wickets in hand, they've got a galaxy of stroke makers after this. And in Kohli, of course, in Shreyas Iyer, in KL Rahul, in Jadeja, in Surya Kumar Yadav, the next ball short
and a loopy kind of a bounce. Kohli tries to pull it away, not for runs. 203 for 1 at the end of the 29th over. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। ट्रेंट बोल्ट के दूसरे स्पेल के पहले ओवर में कुल मिलाकर 6 रन आते हुए पहली गेंद पर चौका था और उसके बाद 2 सिंगल्स लिए गए। भारत ने जो अपने 200 रन पूरे किए, हमारे स्कोरर किशोर लाभ ने बता रहे हैं कि ये 200 रन भारत ने 169 गेंदों का सामना करते हुए 126 मिनट की बल्लेबाजी के बाद पूरे किए हैं। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन मीडिया छोर की तरफ से फेर्ग्यूसन के स्थान पर अब गेंदबाजी के मोर्चे पर नजर आ रहे हैं टीम साउदी ने अब तक अपने कोटे के 4 ओवर किए हैं, 31 रन दिए और अब तक के न्यूजीलैंड के एकमात्र सफल गेंदबाज हैं। उन्होंने अपने पहले स्पेल के दौरान भारत के कप्तान रोहित शर्मा का विकेट लेने में कामयाबी हासिल की थी। फील्ड प्लेसिंग देखें एक बार फिर से वहां पर क्या लगाई गई है श्रेयस के लिए। स्लिप कॉर्डन पूरी तरह से खाली, एक खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा पर तैनात थर्ड मैन की तरफ, बैकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ, ये ऑफसाइड की फील्ड 30 गज के दायरे के अंदर और पहली गेंद जो कि लेग स्टंप की तरफ थी खेल दिया लॉन्ग लेग की दिशा में एक आसान से रन के लिए। अय्यर ने इस 1 रन की मदद से भारत का स्कोर बढ़कर के 204, 1 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली अब तैयार हैं वहां पर अपने 57 के व्यक्तिगत स्कोर पर। 5 चौके अब तक लगाए, उनके बल्ले से अब तक छक्का देखने को नहीं मिला। ये एक दिलचस्प बात है। अब तक जितने भी बल्लेबाज आए हैं भारत की तरफ से आज बैटिंग करने के लिए, सबने कम से कम 1 छक्का जरूर जड़ा है, लेकिन विराट कोहली जो कि अपना अर्धशतक पूरा कर चुके हैं, अब तक कोई छक्का जड़ा नहीं है। अगली गेंद और इस बार गेंद को उठा करके खेला है, क्या यहां पर 6 रन मिलेंगे? विराट कोहली ने लगता है हमारी बात सुन ली और इस टूर्नामेंट का 601वां छक्का विराट कोहली के बल्ले से निकलता हुआ। तो इस तरह से भारत के सभी बैटर्स ने जो अब तक बल्लेबाजी करने के लिए आज वानखेड़े स्टेडियम पर आए हैं, कम से कम 1 छक्का लगाने में कामयाबी हासिल की है और विराट कोहली ने इस अवसर पर आगे की तरफ निकलकर फ्रंट फुट का पर जाकर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद की पिच के नजदीक पहुंचकर टीम साउदी के इस गेंद को उठा करके खेल दिया था वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। अगली गेंद टीम साउदी के हल्के से गेंद को पुश किया, मिड ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद, 30 गज के दायरे के अंदर, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन के साथ विराट कोहली अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और भारत का स्कोर बढ़कर के 211, 1 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 18 चौके और 9 छक्के शामिल हैं। श्रेयस अय्यर पूरी एकाग्रता हासिल करते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छा टूर्नामेंट भी साबित हुआ है उनके लिए अब तक। विश्व कप में उनकी यदि बात करें तो इससे पूर्व 1 शतक और 3 अर्धशतक उनके नाम के आगे दर्ज हैं। सऊदी की अगली गेंद बैकफुट पे जाकर पंच किया, लेकिन स्वीपर कवर पर फील्डर मौजूद है। रचिन रविंद्र के रूप में 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ भारत 212, 1 विकेट के नुकसान पर लगातार न केवल ये दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ जब कमज़ोर गेंद मिलती है तो बीच में अपना मौका नहीं चूकते और इस ओवर के दौरान टीम साउदी के गेंद पर वो कर भी दिखाया। विराट कोहली ने अपनी पारी का उन्होंने पहला छक्का लगाया। कुल मिलाकर 5 चौकों के साथ अब तक 64 रन बना चुके हैं। 70 गेंदों का सामना करने के साथ ही विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच 47 रनों की साझेदारी अब तक हो चुकी है और देखना यह है कि क्या यहां पर एक बड़ा आकार ले पाती है। टीम साउदी की अगली गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, ऑफसाइड में दौड़कर 1 रन पूरा कर लेंगे। इससे पहले कि सेंटनर गेंद तक पहुंचकर उसे उठाने का प्रयास कर पाते, दोनों खिलाड़ी सुरक्षित अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही तेज तर्रार खिलाड़ी और किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नजर नहीं आई। जैसे ही कॉल मिली थी वहां पर लेने की, दौड़ पड़े दोनों खिलाड़ी अपने अपने छोर की तरफ, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी असमंजस की स्थिति पैदा करते हुए। और इसी तरह की क्रिकेट देखने के लिए यहाँ पर लगभग 32,000 दर्शक मौजूद हैं। टीम साउदी एक छोटी सी मंत्रणा करते हुए कप्तान केन विलियमसन से कि किस तरह से इस जोड़ी को अलग किया जा सके। वहां पर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। वहां पर विराट कोहली बैकफुट पे जाकर पंच कर दिया गेंद को, लेकिन स्वीपर कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा और इसके साथ ही ओवर की भी समाप्ति हुई 213, 1 विकेट के नुकसान पर। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ है? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। Yes, Shreya Iyer also looking confident, and of course the heat
must be swapping, and Shreyas Iyer and Virat Kohli taking a short break in the middle. The umpires are in a little consultation, a banana break as we might call it. They're seeing gulping down a banana each. Bananas are supposed to be energy replenishers in quick time, and we can realize from the commentary box here, where the air conditioning today is not 100%, that it's quite warm outside, and the humidity is quite high as well. 65 Kohli, Shreyas Iyer 19. India 214 for 1. And it's going to be Boult now. Boult will be bowling, and from the far end, Tom Latham adjusts his gloves for the last time, runs back to take his position. The field for Shreyas Iyer, a cover, a point, a sweeper cover. That's the field in the offside as Shreyas Iyer to this delivery, which is coming down on the string into his pads, plays it away towards the mid-wicket region for a single, and rotates the strike. That will bring on strike Virat Kohli. The shadows lengthening here at the Wankhede Stadium, but sunshine and India's fortunes continue to the sun continues to bathe on India's fortunes, as India's batting looking very, very good at this point in time, and looking poised for a 400 total. 215 for 1. We are just beginning over number 31. Kohli is on 65. Shreyas is on 20. Kohli is on strike. Boult, who is still wicketless, and over the wicket, bowls to Kohli. Kohli this time opening the face of the bat to this ball, which is rising short and shoulder high, and plays it away. Just allows the ball to glide off the face of the bat all the way to the third man boundary for 4 runs. And Kohli moves to 69, and India marching imperiously forward to 219 for 1. India looking poised for a big score here, isn't it? जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, तमाम उम्मीदें एक बार फिर से पैदा हो चुकी हैं कि भारत यहां पर एक विशाल स्कोर खड़ा करेगा। ट्रेंट बोल्ट एक बार फिर से तैयार, और इस बार ये गेंद विराट कोहली के लिए ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर की तरफ थी। बैक टू द बॉलर खेलना चाहते थे, लेकिन ठीक तरह से अपने स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए, और बाकी का काम पूरा किया ट्रेंट बोल्ट ने फॉलो थ्रू में। भारत का स्कोर 218, 1 विकेट के नुकसान पर। Kohli is on 69. Shreyas Iyer is on 20 as Boult runs in, this time round the wicket, trying to cramp up the batsman for his rube, but this time digging it in short and allowing Virat Kohli to rise on his toes and tuck that ball away behind square for a single. He moves to 70. Shreyas Iyer will now be in strike. 220 for 1 over number 31 in progress. Boult still wicketless here. The only New Zealand bowler who got amongst the wickets was Tim Southee, who accounted for the dismissal of Rohit Sharma. Boult none for 41. He's into his 6th over. Facing him is Shreyas Iyer. He bowls, this time short. Shreyas pulls, not for runs, and a rather tame sort of a shot. Didn't quite time it. Lucky for him, it wasn't in the air. He had rolled his wrists over all right, but I think was foxed by the pace of the delivery there. Played it rather late, and didn't time it well enough to take him past, to take the ball past that mid-wicket fielder. Shreyas waits now. 220 for 1 India. As Boult runs in round the wicket, bowls to Shreyas Iyer. Shreyas Iyer this time off the pads. He's flicking it away towards the long on region. He'll pick up a single, keep the strike. 21 he is. India 221 for 1 after 31 overs. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
तो 31 ओवर की समाप्ति के बाद दूसरा ड्रिंक्स ब्रेक भारतीय पारी का। श्रेयस अय्यर अब खेल रहे हैं 21 रन बनाकर, विराट कोहली ने 70 रन बना लिए हैं और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ वो अपने 50वें एक दिवसीय शतक की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या वो ये 30 रन बना पाएंगे इस मैदान पर, और अगर बना पाते हैं तो अनिंदो निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा, एक नया विश्व कीर्तिमान विराट कोहली के नाम के आगे दर्ज हो जाएगा। और मज़े की बात यह है कि उस ग्राउंड पर, उस मैदान पर जो कि उनके नायक रहे हैं सचिन तेंदुलकर, उनका होम ग्राउंड है। और हमारे दाईं तरफ हम प्रतिमा देख सकते हैं महान सचिन तेंदुलकर की, जो कि अब से कुछ दिनों पहले यहाँ पर स्थापित की गई थी। विजय मर्चेंट और सचिन तेंदुलकर स्टैंड के बीच हमारे दाईं तरफ कमेंट्री बॉक्स के वो स्ट्रेट लॉफ्टेड ड्राइव करता हुआ स्ट्रोक जो है उसकी प्रतिमा, जो कि अक्सर खेला करते थे सचिन तेंदुलकर, उसकी प्रतिमा वहाँ पर लगाई गई है। और इस मैदान पर अगर वो ये कीर्तिमान स्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और एक बहुत लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट समर्थक दर्शक इस पारी को याद रखेंगे। Absolutely. Each generation shows the way to the next. They set milestones for the next generation to cross their milestones. And I'm sure if Virat Kohli reaches his 50th 100 here, none would be happier than Sachin Tendulkar, whose stand we have right to the right of our commentary box here. Sachin Tendulkar has been Virat Kohli's hero and icon, and he is one man who appreciates the hard work, the talent that that needs to go behind those runs. He has got them and he knows it, and I'm sure if he's in the crowd here, he'll be one of the first ones to stand up and cheer should Virat Kohli reach that landmark. And it will indeed be befitting. What befitting occasion can it be than the semi-final of the World Cup? Virat Kohli already batting 30 shy of what will be a record number of centuries in one-day internationals, his 50th century in one-day internationals, and if he reaches it here, the stadium, I'm sure, will be on its feet applauding him. 1 billion Indian fans beyond the stadium will also doff their hats to this icon of our generation. इस मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए न केवल यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ फिल्म जगत से जुड़ी हुई कई बड़ी हस्तियाँ, जिसमें थोड़ी देर पहले हमने रणबीर कपूर को भी देखा था। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा था कि शायद आज डेविड बेकहम भी यहाँ पर मौजूद होंगे इस मुकाबले को देखने के लिए, जो कि भारत के दौरे पर है फिलहाल, ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान से बाहर निकलती हुई। और भारत इस सेमीफाइनल मुकाबले में एक बहुत ही मजबूत स्थिति में फिलहाल नजर आ रहा है। 31 ओवर की समाप्ति के बाद 221 रन भारत ने अब तक बना लिए हैं। और विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जिस तरह से भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे तमाम उम्मीदें एक बार फिर से पनप चुकी हैं कि इस मुकाबले में भी भारत कहीं ना कहीं 350 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब तक दोनों के बीच में 57 रनों की साझेदारी हो चुकी है। ये 57 रनों की साझेदारी 50 गेंदों का सामना करते हुए हुई है। और पिछले 5 ओवर में यदि देखें तो रनों की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ाने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं एक संकेत है कि अब भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से हावी हो जाना चाहते हैं न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के ऊपर। पिछले 5 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 41 रन जुटाए हैं, यानी 8.20 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं। ड्रिंक्स इंटरवल के बाद नए ओवर की शुरुआत तो हमारे नजदीक वाले छोर से करते हुए ग्लेन फिलिप्स क्रीज के कोने से गेंद के पिच तक पहुंचने के साथ ही श्रेयस अय्यर ने इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में एक आसान से रन के लिए। चैपमैन वहां पर मौजूद, इससे पहले कि उनका थ्रो पहुंचे। सहजता के साथ दोनों बल्लेबाज अपने छोर को बदल चुके थे 1 रन के लिए। भारत इस 1 रन के साथ अब 221 1 विकेट के नुकसान पर। 6 विकेट अब तक ग्लेन फिलिप्स ने हासिल किए हैं इस विश्व कप में। लेकिन आज के इस मुकाबले में सिवाय टीम सऊदी के और कोई भी गेंदबाज कारगर साबित नहीं हुआ है जहां तक विकेट लेने का सवाल है। और निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के लिए। अगली गेंद और इस बार मिडल लक्ष्म पर आती है। इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ देना चाहते थे, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर वहां पर मौजूद। अपने दाईं तरफ जाकर डेरिल मिशेल ने बहुत
चपलता के साथ गेंद को फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया। ग्लेन फिलिप्स दाएं हाथ से ओवर द विकेट, लेग स्टंप पर आते इस गेंद को कलाई को इस्तेमाल करते हुए मोड़ दिया फाइन लेग की दिशा में। लॉन्ग लेग के फील्डर को एक लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है, लेकिन वो दौड़ नाकाफी साबित होगी और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकली 4 रनों के लिए। 226 एक विकेट के नुकसान पर 5 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं ग्लेन फिलिप्स के, और तमाम तरह की मुश्किलें इस समय पैदा करते हुए ये दोनों बल्लेबाज न्यूजीलैंड की टीम और उनके कप्तान के लिए। पूरी तरह से इस समय ऑन साइड की फील्ड प्रेसिंग का मुआयना किया है विराट कोहली ने। 2 फील्डर बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक नजर आ रहे हैं, वहां पर एक खिलाड़ी मिड विकेट पर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन नहीं विराट कोहली के लिए। विराट कोहली अभी भी अपने 74 के व्यक्तिगत स्कोर पर 77 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने 74 रन अब तक बनाए हैं। अगली गेंद और कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद की पिच तक पहुंचे, गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकर सीधा सेंटर के पास गेंद पहुंची। और जिस तरह से बाद में शैडो प्रैक्टिस करते हुए विराट कोहली ने वहां पर बताया कि मुझे इस तरह से गैप हासिल करना चाहिए था, सेंटनर ने भी लगभग वैसी मुद्रा बनाई कि मैं भी रन आउट करने की कोशिश कर सकता था। फिलहाल अगली गेंद और इस बार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मोड़ने की कोशिश बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन 30 गज के दायरे के अंदर फील्डर मौजूद। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति 225 एक विकेट के नुकसान पर भारत 32 ओवर के बाद। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। So there we are, 226 for 1. Kohli is on 74, Shreyas is on 22, 32 overs gone. And India, dare I say, I'm sure almost, eyeing for a 400 run total here. Tim Southee over the wicket, bowls to Shreyas Iyer. Shreyas Iyer goes for a drive, doesn't quite connect as sweetly as he would have wanted to. Just picks up a single, brings Kohli on strike. He's on 74. Southee 1 for 43, the lone wicket to have fallen in this Indian innings, that of Rohit Sharma, as he walks back at the far end, at the pavilion end, into the shadows, the lengthening shadows here at the Wankhede Stadium, and he'll be bowling to India's new number 4, the man who's establishing his position here in innings after innings, Shreyas Iyer. And this time to this ball, which is stuck in a little short. Shreyas Iyer forward, and Kohli playing it away towards the mid-on region for a single. As once again, so Virat Kohli is on 75, Shreyas Iyer is on 23. As a fresh ball now from Southee, runs in over the wicket, bowls to, and this has been hoiked away over the mid-wicket region. The fielder running there, no, it'll go over his head, sailing into the stands for yet another 6. The 602 6, and that'll take India's score galloping along to 234 for 1, and Shreyas Iyer's individual score moves to 29 of 21 deliveries, 42 minutes at the crease, 2 boundaries, 1 4 and 2 6s in that knock of his. Tim Southee once again bowls, and this time Shreyas Iyer rising in his throws, drives towards the mid-on region. The ball actually angling away towards where the deep mid-wicket fielder is, and that'll give one more run to Shreyas Iyer, who moves into his 30s now.
Into over number 33. Kohli is on 75. And already, I think, from the cheering and the lusty cheering in the crowd, one knows that Wankhede is waiting for Virat Kohli to reach that historic landmark of a 50 centuries in one-day internationals. As this time Southee bowls, Kohli drives past that fielder there at cover. Will it be cut off there at the sweeper coverage? And one will have to wait and see. Yes, it has been cut off, and the throw comes back. Conway it was, running in a good 15 yards to his right, and Virat Kohli will have to remain happy with the couple of runs. 77, he goes to 237 for 1. Into over number 33. Southee walking back to the top of his bowling run-up. Kohli's on 77. Southee bowls, Kohli drives handsomely towards long on for a single. He moves to 78. Every run, every single counts. 238 for 1 at the end of 33 overs. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. हमारे स्टैटिस्टिशियन रमेश परब बता रहे हैं कि 2003 के संस्करण में भारत के सचिन तेंदुलकर ने 673 रन बनाए थे 11 मुकाबलों में, और यहाँ पर विराट कोहली उस कीर्तिमान को पछाड़ने के बिल्कुल कगार पर पहुंच चुके हैं. 2 रन और बना लेते हैं तो इस विश्व कप में उनके स्कोर हो जाएगा 674 का, जो कि अपने आप में एक नया कीर्तिमान है भारतीय बल्लेबाजी के लिए. देखना ये है कि क्या वो 2 रन विराट कोहली बना पाएंगे या फिर नए ओवर की शुरुआत ग्लेन फिलिप्स के द्वारा, और पहली गेंद को विराट कोहली ने खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में एक आसान से रन के लिए. इस एक रन की मदद से अब वो 79 के व्यक्तिगत स्कोर पर 83 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने ये 79 रन बनाए हैं 7 चौके और 1 छक्के की मदद से. श्रेयस अय्यर ने अब तक अपनी बल्लेबाजी से खासा मुतासिर किया है. 2 छक्के जिस अंदाज में उन्होंने लगाए वो देखते ही बनता है. उनका स्ट्राइक रेट अब तक है 136 का, जबकि 95 के आसपास का स्ट्राइक रेट है इस समय विराट कोहली का. श्रेयस अय्यर अपने 30 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. थोड़ा सा शफल होते हुए अपने दाईं तरफ गेंद को मोड़ा, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक आसान से रन के लिए स्क्वायर लेग की दिशा में. इस एक रन की मदद से भारत अब 240 एक विकेट के नुकसान पर बहुत अच्छे अंदाज में दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, और जब भी मौका मिलता है तो बड़े स्ट्रोक लगाने से नहीं चूकते. विराट कोहली इस समय तैयार हैं एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए. सचिन तेंदुलकर के 2003 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के कीर्तिमान की बराबरी कर चुके हैं, लेकिन 1 रन और बनाते ही उस कीर्तिमान को वो पछाड़ देंगे, उस कीर्तिमान को पीछे छोड़ देंगे. तैयार है ग्लेन फिलिप्स. अगली गेंद विराट कोहली ने गेंद को मोड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, तोड़कर 1 रन पूरा कर लिया, और इसके साथ ही अब वो भारत की तरफ से विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का गौरव हासिल कर चुके हैं. आनंदो, क्या शानदार सफलता. Yes, yet another landmark for this icon of post-2000 Indian batting legends. After Sachin Tendulkar, who was his icon, this man perhaps deserved, both by sheer talent and determination, to overcome Sachin Tendulkar's record. And Shreyas Iyer this time tosses the ball over the mid-wicket region, high over mid-wicket for yet another 6, and the batting rampage of the New Zealand bowling continues. Shreyas Iyer on 37 of 24. India galloping away towards the 250 mark, 247 for 1. Coming down the track, off the middle of the bat, 91 meters, Glenn Phillips, as Shreyas Iyer waits now for Phillips, who is from the pavilion in just 2-3 short steps, bowls to Shreyas Iyer. Shreyas Iyer waits for the ball to spin away from him and gently taps it away behind square on the leg side behind where the backward square leg fielder is positioned. He'll pick up a single, will Shreyas Iyer, who moves to 38. Virat Kohli is on 80. He waits for Glenn Phillips.
Kohli chant already beginning to seize Wankhede as if by a spell. The Kohli chant every time he takes stance. End of that 34th over, 248 for 1. मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. भारत इस सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 248 रन, मात्र एक विकेट का नुकसान उसे अब तक हुआ है। शुभमन गिल जो कि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरे थे, वो रिटायर्ड हर्ट होकर वापस पवेलियन लौटे, लेकिन उससे पहले उन्होंने शानदार पारी खेली थी 79 रनों की। फिलहाल श्रेयस अय्यर तैयार हैं एक बार फिर से इस नए ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए। अब तक अपने बल्लेबाजी से काफ़ी मुतासिर किया है। जिस अंदाज में उन्होंने अब तक 38 रन बनाए हैं मात्र 25 गेंदों का सामना करते हुए, एक चौके और 3 छक्कों की मदद से, वो काबिल तारीफ। पहली गेंद बैकफुट पे जाकर गेंद को कट करने का प्रयास, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड किया गया और रन बनाने की तमाम संभावनाएं समाप्त होती हुई। सेंटनर इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पर है। टीम सऊदी ने इससे पूर्व का ओवर उस छोर से किया था, लेकिन उन्हें गेंदबाजी के मोर्चे से हटा लिया गया है। अब अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए हल्के से गेंद को पुश किया, बल्ले से टकराती हुई गेंद पहुंची थी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में और कप्तान केन विलियमसन वहां पर खुद मौजूद, दाईं तरफ जाकर उन्होंने गेंद को फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया था। श्रेयस अय्यर एक बार फिर से तैयार और इस बार इस गेंद को बैक टू द बॉलर ड्राइव किया, काफी तेज स्ट्रोक, अच्छे टाइमिंग के साथ, लेकिन सेंटनर ने वहां पर फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। हालांकि गेंद को जब रोका तो शायद थोड़ा सा चोटिल कर बैठे अपने आप को, लेकिन किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। एक बार फिर से अपने छोटी बॉलिंग मार्क पर, स्ट्रेटिश बॉलिंग मार्क, क्रीज के कोने से गेंद बैकफुट पे जाकर कट करने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से गेंद की लाइन को चूके गेंद टॉम लैथम के दस्तानों को लगती हुई पहुंची थी शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे। रन लेने का प्रयास नहीं किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। सेंटनर लगातार अपने इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर दूर वाले छोर से, यानी कि गरवारे एंड की तरफ से, इस बार गेंद के पिच के नजदीक पहुंचकर हल्के से गेंद को पुश किया, दाईं तरफ जाकर गेंद को फील्ड किया। सेंटनर ने कोई रन नहीं, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन सेंटनर इस पूरे विश्व कप के दौरान कर रहे हैं और आज उन्होंने अब तक की जो गेंदबाजी की है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाली, भले ही विकेट नहीं मिला हो। अगली गेंद और बैकवर्ड पे जाकर इस गेंद को कट कर दिया, गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर फील्ड कर ली गई और आज का संभवतः ये पहला मेडन ओवर है और इस बात की तस्दीक कर रहे हैं हमारे स्कोरर। ओवर की समाप्ति भारत 248 एक विकेट के नुकसान पर। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। So bowling change from the pavilion end, Trent Boult being pressed into the attack. New Zealand trying all kinds of permutations, combinations, changing ends, but nothing seems to be working for them as the Indian run machine continues unabated, 248 for 1 now. As Trent Boult runs away from us, bowls to Virat Kohli. Virat Kohli plays it away towards the mid-wicket region and all the way for 4 runs. Short it was to Virat Kohli, and Virat Kohli with the horizontal bat pulls it away towards the mid-wicket region imperiously with authority for 4 runs, 250. It comes up, Virat Kohli takes a bow towards the pavilion. He hasn't reached any milestone, I wouldn't know for what. And this time, once again, Virat Kohli is driving. This time he's getting the inside edge of the badger. He was attempting to drive towards the offside. The ball rolls out towards the backward of square region on the leg side. Virat Kohli will be happy taking that single. He goes off strike. He's on 85. Shire is on 38. India 253 for 1. We are into over number 36 only. So a good 14 overs after this. Where will India end up? One will have to wait and see. And
It is now Shreyas Iyer, 38 of 31 deliveries, and this time he lofts Boult over the bowler's head for a huge 6. The shot had impunity, the shot had authority, the shot almost had an element of disdain. It wasn't a good ball, it was short outside the off stumps, giving the batsman the room to free his arms, but then you've got to put those bad balls away. As Boult goes away from us, and this time it's driven once again towards point region. Will run away for 4 runs. Yes, it will. It is a batting fiesta here at the Wankhede Stadium. Shreyas Iyer galloping away to 48 of 33 deliveries, opening the face of the bat, running it past the point fielder all the way to the point boundary for 4 runs. Shreyas Iyer looking good as Boult from under us at the commentary box end goes away from us, round the wicket he goes to Shreyas Iyer. Shreyas Iyer this time drives gently. Boult tries the field of his own bowling, just gets the fingers onto it. The ball travels to the long on region, will take Shreyas Iyer to 49 and will bring Virat Kohli on strike. Virat Kohli is on 85. The partnership between them now 100 in 79 deliveries. .98, I'm corrected. There's a flash and on the screen, and this time it's been driven away towards the deepish long on region for a single by Virat Kohli. He's an 86 of 88 deliveries, so he's catching up on the scoring rate as well. Virat Kohli, who's playing the sheet anchor to begin with, now beginning to chance his arms, and why not 265 for 1. You can start dictating terms for your end of 36 overs, 265 for 1. और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर। 4 रन खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर। सुनना न भूलें, आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। तो भारत 265 एक विकेट के नुकसान पर तमाम दर्शक जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इस मुकाबले को देख रहे हैं, मंत्रमुग्ध हो गए हैं जिस तरह से श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने अब तक बल्लेबाजी की है। श्रेयस अय्यर अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर हैं और अगर वो ये 1 रन बना लेते हैं तो ये एक दिवसीय मैचों में उनका 18वां अर्धशतक होगा। लेकिन फिलहाल नए ओवर की शुरुआत सामने वाले छोर की तरफ से यानी गरवारे एंड की तरफ से, और सामने हैं विराट कोहली। पहली गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद के पिच तक पहुंचे और हल्के हाथों से उस गेंद को पुश कर दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। सेंटनर ने वहां पर हालांकि कप्तान केन विलियमसन को खड़ा किया था, लेकिन विलियमसन के हाथों के बिल्कुल सामने से निकलती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में चली गई थी। इस 1 रन की मदद से विराट कोहली अब 87, भारत 266 एक विकेट के नुकसान पर। इन 266 रनों में 22 चौके और 12 छक्के लगाए हैं। बाउंड्रीज की तो मानो बाढ़ आ गई है वानखेड़े स्टेडियम पर। सेंटनर गरवारे छोर की तरफ से एक बार फिर से तैयार और इस बार गेंद के पिच के नजदीक पहुंचकर इस गेंद को खेल दिया है डीप पॉइंट की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद है स्वीपर कवर पर, बाईं तरफ जाकर इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जा सके डेवन कॉनवे के द्वारा और थ्रो किया जा सके विकेट कीपर की तरफ, आसानी के साथ दौड़कर वहां पर श्रेयस अय्यर ने 1 रन पूरा कर लिया और साथ ही साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया जो मात्र 35 गेंदों में उन्होंने बनाया है 58 मिनट की बल्लेबाजी करते हुए, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल हैं।
क्या शानदार प्रदर्शन रहा है श्रेयस अय्यर का इस विश्व कप में। ये उनका चौथा अर्धशतक, एक शतक पिछले मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ उन्होंने लगाया था और शतक बनाकर नाबाद रहे थे। 128 रनों की एक बेहतरीन पारी उन्होंने खेली थी। अगली गेंद विराट कोहली के लिए, गेंद को मोड़ दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, एक आसान से रन के लिए। भारत इस एक रन की मदद से बढ़कर अब पहुंच चुका है 268, एक विकेट के नुकसान पर। श्रेयस अय्यर फिर से गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार। सेंटनर के इस ओवर की क्रीज के कोने से गेंद और इस बार गेंद को दिशा देने की कोशिश, थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से गेंद को प्लेस करते हुए, लेकिन अपने इरादे में कामयाब नहीं हुए। बाईं तरफ जाकर कप्तान विलियमसन ने गेंद को फील्ड किया, जो कि इस समय बैकवर्ड पॉइंट पर मौजूद हैं। रनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं। सेंटर की गेंद इस बार स्वीप कर दिया है, गेंद हवा में है, लेकिन एक बाउंस के बाद फील्डर के पास पहुंचती हुई डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन के साथ छोर बदला दोनों बल्लेबाजों ने और इस एक रन की मदद से भारत का स्कोर भी बढ़कर के पहुंच चुका है 269, एक विकेट के नुकसान पर। लगातार रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश इस समय विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के द्वारा हो रही है, जिसमें ज़्यादा योगदान कहूँगा अगर गति बढ़ाने का है तो वो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर का है, जिनका स्ट्राइक रेट 137 का, और उसके उलट अगर आप देखें तो लगभग 97 के स्ट्राइक रेट के साथ विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं और अमूमन इस विश्व कप में वो एक सूत्रधार की भूमिका में नजर आए हैं। अगली गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद, एक रन जरूर मिल जाएगा। ओवर की समाप्ति हुई, भारत 270, एक विकेट के नुकसान पर 37 ओवर की समाप्ति के बाद। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। Well, Shreyas Iyer getting to his 18th half century in ODIs here at the semi-final of India versus New Zealand here at the Wankhede Stadium. He couldn't have found a better opportunity to score a 50, and he has done. And add that to his prolific scoring in this World Cup, 421 runs before this match. So he's already got 471 under his belt. Boult runs away from us and bowls. And this time there is a shy of an appeal against Virat Kohli. He did drop him on the pads, but I think it was going down the leg side. Skipper Williamson takes a very close look and tries to confer with his fielders, but I don't think New Zealand is going up for this one. This ball is scrambled seam one, wrapped Virat Kohli on the pads, but it was always on the roll of the pads going down the leg side. Boult goes away from us, bowls this time, giving Virat Kohli a little room to play that half pull, half sweep shot, and he plays it not quite as comfortably, the timing, and it sort of rolls out towards the deep backward square leg, fine leg region for a single, and that'll bring in strike Shreyas Iyer. Shreyas Iyer and India's score now 271 for 1. Shreyas waits for Trent Boult. Boult goes away from us, round the wicket, bowls to Shreyas Iyer, digs it in short. Shreyas rising on his toes, closes his wrists, rolls his wrists over, plays the ball into the ground towards the deep backward square leg region. He'll pick up a single. It was not hit with any timing. It was just meant to fend that ball away and rotate the strike, and that's exactly what the intent was, and that's exactly what he got. He's on 52 of 38. Virat Kohli is on 90 of 93, and that is the greatness of Virat Kohli. He is in no mood to be the dominant batsman. He has enough behind him. He knows he can change gear anytime. This time he's driving all along the ground. Very handsome looking extra cover drive from Virat Kohli. Not for too many runs, just a single, but it has the stamp of class written all over it. Coming down the crease, opening the face of the bat, timing that ball very, very sweetly. Shreyas Iyer is in 52, he's in strike, over number 38 in progress. Trent Boult into the shadows taking hold of the green out there at the Wankhede, and in another 15-20 minutes time I think the lights will begin to take effect. 274 for 1. As Trent Boult goes back to the top of his bowling run-up.
Kane Williamson has a word with him as he tosses that ball as he moves back to the top of his bowling run-up. And it's going to be Virat Kohli facing him. Bowls, and Virat Kohli tries to go for that pull shot. He plays the ball into his body. He's in some pain, is Virat Kohli. He's an extremely fit man, Virat Kohli. Did he play it into his pads? Did the ball come and hit his pads? And no, it really was a cramp actually that affected Virat Kohli as he went into a swivel for that pull shot, and immediately as he completed that swivel he held his thigh muscles. So down with a cramp there in the middle. So the heat here is taking its effect, it's taking its toll on the batsman. MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. जी मुझे लगता है इसके अलावा वहाँ पर विराट कोहली ने जिस तरह से वो गेंद खेली थी उनके शरीर के काफ़ी नज़दीक थी और उसे फाइन लेग की दिशा में वो खेलना चाहते थे, और उस प्रयास में उनको अपने शरीर को काफ़ी मोड़ना पड़ा, पिवट लेना पड़ा अपने एडी पे, जिसकी वजह से दाएं पैर की मांसपेशियों में वो खिंचाव आया, जिसकी वजह से थोड़े से इस समय असहज महसूस कर रहे हैं। भारतीय टीम के फिजियो नितिन पटेल इस समय बीच मैदान पर हैं उनकी सहायता के लिए, लेकिन आज एक बेहतरीन पारी उन्होंने अब तक निश्चित रूप से खेली है। 92 रन अब तक उनके बल्ले से निकले हैं और इस विश्व कप में तो उन्होंने एक के बाद एक कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पहले सचिन तेंदुलकर के एक दिवसीय मैचों में 49 शतकों की बराबरी की, और आज किसी भी विश्व कप के किसी भी संस्करण में सबसे ज़्यादा रन बनाने का श्रेय भी उन्होंने हासिल कर लिया, जो कि पहले भारत के सचिन तेंदुलकर के नाम था। 673 रनों का 2003 के विश्व कप में जो उन्होंने हासिल किया था 11 मैचों को खेल करके, लेकिन वो अभी 10वां मैच खेल रहे हैं इस विश्व कप का और उस कीर्तिमान को भी ध्वस्त कर चुके हैं। और कहाँ ध्वस्त किया उन्होंने? सचिन तेंदुलकर के होम ग्राउंड पर। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय पारी की प्रशंसा करनी होगी। और आनंदो, इस पूरे विश्व कप पर आप अगर नज़र दौड़ाएं तो निश्चित रूप से भारतीय टीम का प्रदर्शन एक ऐसा प्रदर्शन है जो बरसों बरस तक याद किया जाएगा। भारत की बल्लेबाजी की तो हम अक्सर चर्चा करते ही हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने अपना जौहर दिखाया है, अपना जलवा बिखेरा है इस पूरे विश्व कप के दौरान, वो अपने आप में एक ऐसी घटना है जो कि काफ़ी लंबे समय तक याद किया जाएगा। हालांकि कई अवसरों पर पैचेज में हम अच्छी परफॉर्मेंस भारतीय गेंदबाजों की देखते आए हैं इतने वर्षों से, लेकिन एक साथ सभी गेंदबाजों का अच्छा प्रदर्शन इतने लंबे समय तक होना, ये ज़रूर भारतीय टीम के लिए एक उपलब्धि रही है इस विश्व कप की। Absolutely, and I think we'll come to this analysis a little later. The bowlers have made a big difference to the fortunes of India. Santner now bowls, this time to Kohli. Kohli drives only till that short cover region where Kane Williamson fields. Santner, none for 49. This is his last over. Bowls to Kohli, round the wicket, from the edge of the crease, bowls. Kohli this time rising on his toes to the ball which is spinning away from the right-hander. Pushes it away all along the ground towards the offside. Conway fields, and one more to Kohli's total takes him to 93. Shreyas is on 53. Yes, India's bowlers have really made an impact, and that's where the difference with the other teams sort of starts widening up. The gap starts widening. Santner bowls now to Shreyas Iyer. Shreyas Iyer drives towards the sweeper cover region for a single, takes his individual score to 54. Now if you look at the New Zealand bowling department vis-a-vis the Indian bowling department, now there is of course Santner with 16 wickets. I'll come back to that later. Santner bowls, and this time this is taking the outside edge of Kohli's bat as he essays for the drive, doesn't quite time it. The ball flies at the thickish outside edge towards where a backward point is stationed. There is a backward point and there is a third bat, and
That was a close one to Phillips as he essayed for that drive. Uppish, it was in the air for a tantalizingly long period of time, but did fall short. The Wankhede crowd had their heart in their mouths. But no damage done. Santner once again bowls, this time to Kohli. Kohli this time almost as if he's playing the 40th over in a test match. Bat and pad close together. Full face to the bat. End of 39 overs, 277 for 1. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Yeah, coming back to India's bowling this World Cup. Now you look at Bumrah, 3.65 economy, 17 wickets. Shami, 16 wickets he played just 5 matches. Jadeja, 16 wickets, 3.97 is economy. Kuldeep Yadav, 14 wickets, 4.15 is economy. So these bowlers have made this difference. Twice India have dismissed oppositions for under 100. जिसमें कोई संदेह नहीं है। और मोहम्मद सिराज को अगर आप देखें आईसीसी रैंकिंग में पहले स्थान पर है। शुभमन गिल बैटिंग के मामले में पहले स्थान पर है आईसीसी रैंकिंग में। तो कहीं ना कहीं भारत की समय तूती बोल रही है। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत फर्ग्यूसन के द्वारा और पहली गेंद को श्रेयस अय्यर ने खेल दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में एक आसान से रन के लिए। इस एक रन की मदद से भारत का स्कोर 278, एक विकेट के नुकसान पर। और भारत की अगर आप टीम रैंकिंग देखें तो पहले स्थान पर है भारत एक दिवसीय मैचों में। न केवल एक दिवसीय मैचों में बल्कि T20 फॉर्मेट की आप बात कर लें या टेस्ट मैचेस की बात कर लें तो तीनों ही फॉर्मेट्स में भारत इस समय पहली रैंकिंग पर है, जो कि निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल अगली गेंद और फिर से लॉन्ग लेग की दिशा में खेला गया शॉट विराट कोहली के द्वारा एक रन के लिए। इस एक रन की मदद से वो पहुंचे 94 के व्यक्तिगत स्कोर पर और भारत का स्कोर 279 रन एक विकेट के नुकसान पर। नर्वस 90s में है इस समय विराट कोहली और बीच बीच में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर दर्शक कोहली के जो उत्साह स्वर होता है उसके साथ उनका जोश बढ़ाने की कोशिश करते हैं। श्रेयस अय्यर फिलहाल तैयार हैं फर्ग्यूसन के इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। आज की सिर्फ एकमात्र सफलता टिम सऊदी के नाम। ये पटकी हुई गेंद लेग स्टंप से बाहर की तरफ निकलती हुई, वाइड का इशारा निश्चित रूप से आएगा अंपायर की तरफ से। अंपायर रॉड टकर ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। गेंद लेग स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ थी और एक और अतिरिक्त रन उपहार के स्वरूप भारत को समय मिलता हुआ। भारत का स्कोर 280 एक विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। श्रेयस अय्यर तैयार हैं इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। उनके लिए एक खिलाड़ी शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर 30 गज के दायरे के अंदर ऑफसाइड के फील्ड का जहां तक सवाल है को खेल दिया वहां पर मिड विकेट क्षेत्र में और लॉन्ग ऑन के बीच में गैप हासिल करते हुए 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से दंदनाते हुए बाहर चली गई। इस चौके की मदद से भारत का स्कोर 284 एक विकेट के नुकसान पर। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ऐसा ही कुछ लग रहा है विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की इस जोड़ी को देख करके बीच मैदान पर। विराट कोहली ने अब तक 94 रन बनाए हैं 93 के स्ट्राइक रेट से। श्रेयस अय्यर ने 59 रन बना लिए 140 के स्ट्राइक रेट से। अगली गेंद लेग स्टंप पर आती गेंद को फ्लिक कर दिया, लॉन्ग लेग पर फील्डर मौजूद है। एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा अय्यर को इस अवसर पर। इस एक रन के साथ भारत का स्कोर बढ़ करके अब 285 रन एक विकेट के नुकसान पर। और श्रेयस अय्यर लगातार बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए यहां पर बैठे तमाम दर्शकों का मन मोहने में लगे हुए हैं। इस एक रन की मदद से अब उनका व्यक्तिगत स्कोर पहुंच गया है 60। क्या वो भी आज शतक बनाने में कामयाब होंगे? यदि ऐसा कर पाते हैं तो इस विश्व कप में उनके लिए दूसरा शतक होगा। फिलहाल कोहली तैयार हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए और इस बार इस गेंद को खेल दिया
मिड ऑन की दिशा में दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ थ्रो था केन विलियमसन का और क्रीज में पहुंचने के प्रयास में कहीं ना कहीं अपना संतुलन खोया। पहले ही उनके दाएं पांव की मांसपेशियों में खिंचाव आया था अब से थोड़ी देर पहले, और देखना ये होगा कि क्या वहां पर पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है विराट कोहली या किसी किस्म की कोई परेशानी है। अपना संतुलन खो बैठे थे, कहीं ना कहीं जो अपने बैट को घसीटते हुए वो आगे ले जा रहे थे, शायद ग्राउंड में कहीं थोड़ा सा वो अटका जिसकी वजह से उन्होंने अपना संतुलन खोया। लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर इस समय मौजूद। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5 बजने को है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें। प्रदेश में एक पखवाड़े से ज़्यादा समय से चल रहा धुआंधार चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थमेगा। उसके बाद केवल घर घर संपर्क के जरिए ही मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाई जा सकेगी। चुनाव आयोग कल मतदान दलों को रवाना करेगा ताकि वे मतदान के दिन सभी व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंध कर सके। प्रदेश में सभी 230 सीटों पर 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। हालांकि नक्सल प्रभावित कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान दोपहर 3 बजे तक होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न सभाओं में कहा कि कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे और कुछ लोग झूठे वादों के भ्रम में आ गए थे, लेकिन अब कांग्रेस को सब जान गए हैं वे झूठ की दुकान है। अब कोई उन पर भरोसा नहीं करेगा। माहौल पूरी तरह से बदल गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दतिया और सीधी में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनी बनाई सरकार को गिराकर ग्वालियर और चंबल की जनता के साथ विश्वासघात किया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मध्य प्रदेश में अब तक 1,85,000 से अधिक व्यक्तियों पर कार्यवाही की जा चुकी है, जबकि 2 लाख से अधिक शस्त्र थानों में जमा हुए हैं। और ICC क्रिकेट विश्व कप में इस समय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 39.5 ओवर में 1 विकेट पर 286 रन बना लिए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। से एक दिवसीय मैचों में क्या इस उपलब्धि को वो हासिल कर पाएंगे। रचिन उनके सामने और इस बार इस गेंद को खेल दिया है प्लेस करते हुए पॉइंट क्षेत्र में। डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद, 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा इस अवसर पर। इस 1 रन के साथ विराट कोहली का स्कोर 96। 103 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने ये 96 रन हासिल किए हैं, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल है। ऑफ साइड पर श्रेयस अय्यर के लिए 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर, एक थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट और एक एक्स्ट्रा कवर। ऑन साइड पर एक खिलाड़ी फाइन लेग पर टिम साउदी के रूप में। अगली गेंद श्रेयस अय्यर के लिए और हल्के से गेंद को पुश कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, ये देखते हुए कि फील्डर वहां पर काफी दूर है। चहलकदमी करते हुए रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से भारत अब 290 1 विकेट के नुकसान पर। रचिन रविंद्र के इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर 3 सिंगल्स लिए जा चुके हैं। विराट कोहली को सिर्फ 1 चौके की आवश्यकता है। विराट कोहली तैयार। अगली गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, अपने बाईं तरफ डाइव करते हुए गेंद को रोकने की कोशिश, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटकी। लेकिन बैकअप कर रहे थे वहां पर खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में। गेंद को जाकर उन्होंने फील्ड किया और विराट कोहली को मौका मिल गया 1 रन और बटोरने का। इस 1 रन की मदद से विराट कोहली अब 97 पर और भारत का स्कोर 291 1 विकेट के नुकसान पर। तमाम दर्शक इस समय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर दम साधे बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं उस क्षण का, उस लम्हे का, जब विराट कोहली अपना 1 दिवसीय मैचों में 50वां शतक पूरा कर पाए। फिलहाल श्रेयस अय्यर के लिए अगली गेंद को कट करना चाहते थे और गेंद की लाइन को चूके, लेकिन टॉम लैथम का मानना है, उन्होंने अपील भी वहां पर की है कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया है। 1 रिव्यू पहले ही गवा चुके हैं केन विलियमसन। क्या यहां पर रिव्यू लेंगे, DRS का इस्तेमाल करेंगे? और अगर मंत्रणा हो रही है, अभी तक औपचारिक कोई वहां पर इशारा नहीं आता हुआ
कि वो रिव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर नहीं। भारत का स्कोर 291 है, 1 विकेट के नुकसान पर। तो न्यूजीलैंड ने वहां पर रिव्यू ले ही लिया है अंततः, और देखना होगा कि टीवी अंपायर वहां पर क्या निर्णय देते हैं। जोएल विल्सन त्रिनिदाद के हैं, 56 वर्ष के, 34वें एक दिवसीय मैच में टीवी अंपायरिंग की भूमिका निभा रहे हैं। अल्ट्रा एज पर देखना पड़ेगा कि गेंद और बल्ले के बीच में क्या किसी तरह का कोई संपर्क था, और अल्ट्रा एज पर इस समय जो सामने वाले स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि गेंद और बल्ले के बीच में किसी तरह का कोई संपर्क नहीं, और एक ऊर्जा का संचार करता हुआ ये दृश्य यहां पर बैठे तमाम दर्शकों के बीच में। रचिन रविंद्र तैयार अपने इस ओवर की अंतिम गेंद को लेकर के। भारतीय पारी का ये 41वां ओवर है। पूरी एकाग्रता के साथ श्रेयस अय्यर एक बार फिर से तैयार हैं अपने 63 के व्यक्तिगत स्कोर पर। इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए बैकवर्ड पे जाकर के इनको कट किया, लेकिन स्वीपर कवर पर फील्डर मौजूद, 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। इसके साथ ही ओवर की भी समाप्ति हुई। इसका मतलब ये कि अगले ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर फिर से श्रेयस अय्यर होंगे, और भारत इस समय 292 1 विकेट के नुकसान पर। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। Yeah, I'm sure as Shreya Iyer took that single, there would be a few thousand among the 33,000 here who would have said, "Oh no, leave it. Why did you take that single?" They are all waiting for that landmark that Kohli will reach, that will take him to a kind of a pinnacle that no one has scaled before. The 50th century in one-day internationals. A man who is just playing his 279th one-day international. But in the meantime, it's Shreya Iyer facing Ferguson, who's running away from us at the pavilion end over the wicket, wide of the crease. Bowls to Shreya Iyer, and Shreya Iyer play essays into a pull shot. Doesn't quite get it from the middle of the bat. It goes into a flat batted pull towards the long on region, not for a run, and just for a single though. But thankfully that will bring on strike Virat Kohli. Already the spectators know, they are all aware of the stats these days. So there is a chant of Kohli, Kohli, Kohli going around below us. That might just be sneaking into your sets there. And Kohli this time drives but doesn't quite get hold of the ball. And off the thickish inside edge, it flies away towards the deep mid-wicket region for a single, taking Kohli to 98 now, and the Indians score to 294 for 1. Lockie Ferguson runs in with his black shoes, runs away from us, and bowls to Shreya Iyer. Shreya Iyer goes into that pull shot, swivels, doesn't quite time it sweetly, but enough for him to amble across for a single and give Kohli yet another chance to have a shy at a historic landmark that awaits him here. Kohli is a 98 of 105. So Kohli waits as Lockie Ferguson runs away from us. Over the wicket to Virat Kohli. Virat Kohli flicks that ball away. This will run away to the ropes, will it? It's been picked up by Conway, and Virat Kohli comes back for his second run, and he scored a century here. The 50th one-day international century, the maximum by any batsman ever. And Virat Kohli, the king, soaks in the applause, waves towards the pavilion, where his wife also puts her hands together in appreciation of this great batsman. 13,777 runs at an average of 58.88. Virat Kohli
the king of all the surveys. तो आनंदो जिस क्षण का इंतजार था वो यहां पर पूरा होता हुआ। विराट कोहली ने एक दिवसीय मैचों में 50वां शतक जड़ते हुए सचिन तेंदुलकर के कीर्तिमान को समाप्त कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, और वो भी उन्हीं के होम ग्राउंड पर। और यहां पर दर्शकों में मौजूद सचिन तेंदुलकर ने खड़े होकर इस कीर्तिमान के स्थापित होने के साथ ही उनका अभिनंदन किया। और आपने एक चीज का गौर किया होगा, काली शर्ट पहन के बैठे हुए थे वो, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इस चीज के लिए काली शर्ट पहन के बैठे होंगे कि जर्सी भी न्यूजीलैंड की काली है और आप इन्हीं के सामने वो शतक बनाने वाले हैं। शायद इसका अनुमान उनको पहले हो गया होगा। फिलहाल अगली गेंद, और गेंद को खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए जाएंगे। भारतीय समय अनुसार शाम के 5:07 पर यह कीर्तिमान स्थापित किया है विराट कोहली ने, जो कि निश्चित रूप से अविस्मरणीय है, अनुपम है, अद्भुत है, और एक लंबे समय तक इस क्षण को न केवल वो याद रखेंगे बल्कि यहां पर बैठे तमाम दर्शक याद रखेंगे, और जो इस प्रसारण को सुन रहे हैं वो भी याद रखेंगे। Absolutely. Lockie Ferguson goes away from us. Boult to Virat Kohli. Virat Kohli drives, and this time it's going towards the mid-wicket fence for 4 runs. I'm sure an acceleration was on the cards. Virat Kohli will now step into a different gear. 106 of 108, 301 for 1 at the end of the 42nd over. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. तो विराट कोहली ने फर्ग्यूसन के इस ओवर के दौरान एक दिवसीय मैचों में अपना 50वां शतक पूरा कर लिया है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, अगर आप उनके शतकों का फहरिस्त उठा करके देखें तो सबसे ज़्यादा शतक जिस देश के खिलाफ उन्होंने लगाए हैं वो श्रीलंका है। 10 शतक संभवतः उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लगाए हैं, और न्यूजीलैंड के खिलाफ ये उनका 6वां शतक, कुल मिलाकर 50वां। क्या शानदार बल्लेबाजी की है इस खिलाड़ी ने, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। And absolutely, while comparisons have always been unfair, and you can never make comparisons between players of 2 different generations, but just to give you a measure of Virat Kohli's achievements, his 50th 100 has come in his 279th match. Sachin Tendulkar's came in his 462 matches. अपने चिर परिचित अंदाज में विराट कोहली ने इस शतक को पूरा करने के बाद अपनी भावनाओं को जाहिर किया, और तारीफ करनी होगी केन विलियमसन की कि उन्होंने वहां पर ओवर की समाप्ति के बाद विराट कोहली के पास जाकर उनसे कुछ देर के लिए बात की, उनको शाबाशी दी, उनके कंधे पे हाथ रखा। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत रचिन रविंद्र की, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ निकलती हुई। रनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं, भारत का स्कोर 304, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं इस समय श्रेयस अय्यर, जो कि 66 के व्यक्तिगत स्कोर पर है। क्या वो भी अपना शतक पूरा कर पाएंगे? अगली गेंद फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, खेलने की कोशिश नहीं की, और बाकी का काम पूरा किया टॉम लैथम ने। भारत के लिए आज एक अच्छी शुरुआत दी कप्तान रोहित शर्मा ने, और जब वो आउट होकर गए तो उसके बाद रनों की रफ्तार यकायक थोड़ी धीमी हो गई थी, और उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद भारत के लिए यहाँ पर 350 का आंकड़ा पाना मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल अगली गेंद, और इस गेंद को खेल दिया गेंदबाज के सर के ऊपर से, वहां पर लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, लेकिन उनके बाईं तरफ से निकलती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई, एक छक्के के लिए, और इस टूर्नामेंट का 605वां छक्का। छक्कों की झड़ी लगा करके रख दी है श्रेयस अय्यर। जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, आज उसका खुल करके उन्होंने प्रदर्शन किया। और साथ ही साथ आनंदो ये भी कहना होगा कि भारतीय प्रबंधन दल ने जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है, जिस तरह से लगातार वो उनके पीछे खड़े रहे हैं, आज उस सपोर्ट को, उस जो पीछे खड़े रहने की जो एक पूरी की पूरी टेम्पलेट रहा है भारतीय प्रबंधन का, उसे सार्थक करके दिखाते हुए यहाँ पर नजर आए हैं श्रेयस अय्यर। Absolutely, no doubts about that. The confidence you instill as a captain, as a team management, reflects on the performance of the player. As Shreyas Iyer hoiks this one away towards the mid-wicket region for yet another run. He moves to 73, 311 for 1. We are into the 43rd over. 2 गेंदों का आना बाकी है। विराट कोहली
इस समय 106 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं। ऑफ साइड की फील्ड का मुआयना किया, 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर, एक थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट और एक एक्स्ट्रा कवर। अगली गेंद बैकफुट पे गए और एक लंबा गैप है वहां पर बैकवर्ड पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के बीच में, लेकिन प्रोटेक्शन है स्वीपर कवर के रूप में। वहां पर गेंद को कट किया था, लेकिन सिर्फ 1 रन के लिए। इस 1 रन की मदद से भारत अब 312 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का 43वां ओवर चल रहा है और उसकी अंतिम गेंद का आना बाकी है। गरवारे छोर से रचिन, रविंद्र एक बार फिर से तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ एक और रन उपहार के रूप में जुड़ता हुआ भारत के खाते में। भारत 313 1 विकेट के नुकसान पर। दिस ओवर इज ब्रॉट टू यू बाय ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। बैकफुट पे जाके कट किया। इस अंतिम गेंद को फील्ड किया गया वहां पर डेवन कॉनवे के द्वारा, जो कि स्वीपर कवर पर है। ओवर की समाप्ति हुई, भारत 314 1 विकेट के नुकसान पर 43 ओवर की समाप्ति के बाद। Virat Kohli getting to his 50th 100 here at the Wankhede Stadium and creating history. And the man whose record he broke, the great Sachin Tendulkar, stood in the stands applauding the feat of someone who has regarded him as his icon. And this is how the glorious tradition of cricket continues. Sachin Tendulkar's idol was Sunil Gavaskar. He modelled himself under Sunil Gavaskar. He was his idol, was his icon. He wanted to be like him, and he went beyond him. And then there was Kohli, for whom Sachin Tendulkar was the icon, whom he took on his shoulders when they won the 2011 World Cup. He was his icon, and now he has gone past him. That is how evolution happens. That is how the spectators keep coming, thronging to the ground to see new heroes emerge. Well, it's going to be Southee running away from us, bowling to Shreyas Iyer. Shreyas Iyer, not quite timing this one, goes into a kind of a slog hike, but all along the ground. Will come back for the second run. Quick running, not quite as good a shot, but better running. Fetches India 2 more, 316 for 1. We're into the 43rd over. There are a lot of overs to come. Where will India finish up here is something that must be playing on Kane Williamson's mind, and also on the minds of the cricket pundits along with us commentators. And will that leave New Zealand the opportunity to have a shy at that total? At this time, Shreyas Iyer is playing that ball away, dragging that ball towards the deep mid-wicket region, to the ball in the often middle stump and all along the ground though. And we'll take one more to the total, 317 for 1. The score predictor, if India goes on at this current rate, is about 401. Now, it's not as if 400 is not a gettable, beyond the reached score, but a semi-final match, it's pressures, and Virat Kohli this time, this ball has been played away towards the deep mid-wicket region. It was uppish, was in the air for a while, and it was Phillips who was converging on that ball. It was in the air for a considerable amount of time and just fell short of the fielder there. He had got his fingers to it, Phillips, but just couldn't latch on to it. It was one of those catches which come off once in a million. As once again Southee runs away from us, bowls to Kohli. Kohli this time hikes it. This is clean. This is beyond anybody's reach. Over the long on region for a towering 6. 115 Virat Kohli of 111.
This is the stuff Virat Kohli is made of. When he was pottering around for those ones and twos, getting his eye in, letting the other batters play their shots, one was wondering, why not Virat? Why don't you go for your shots? But now that they have wickets in hand and Virat Kohli is beginning to open their shoulders, it must be sending shutters down the New Zealand attack. And this time Virat once again to this ball, opens his shoulders, Flick drives it away to the deep long on region. He'll come back. What a runner he is. Tireless he is. 9 fours, 2 sixes in that innings. 327 for 1. Now India's total looking more and more imposing with every run scored, and there is such a wealth of batting to come after this. Virat Kohli waits on 117. Southee already 13 runs in this over. Over the wicket, bowls to Kohli. Kohli this time once again a nice flick at the wrists there. You don't know which way the ball is going. He comes down the pitch. You hope he'll drive. And he's gone there, caught in the deep mid-wicket region as he flicked that ball. Southee picks up a wicket. This ball was flicked away, and at first sight we were a little unsighted there. Picked up at the deep mid-wicket region as Kohli takes his walk back to the pavilion. But he has created history here. 327 for 2, 117 Kohli. He walks back to the pavilion. और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर। 4 रन, खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। तो विराट कोहली के विकेट का पतन हो चुका है और विराट कोहली ने क्या शानदार पारी खेली। 117 रनों की 113 गेंदों का सामना करने के बाद और डेवन कॉनवे ने उन्हें स्क्वायर लेग की दिशा में कैच लपकते हुए टिम साउदी की गेंद पर वापस पवेलियन रवाना कर दिया। और टिम साउदी का ये दूसरा विकेट था इस मैच में भारत के खिलाफ और अब तक के एकमात्र सफल गेंदबाज हैं जहां तक सवाल है न्यूजीलैंड की टीम का। और मजे की बात यह है कि ये 7वां अवसर है जबकि टिम साउदी ने विराट कोहली का विकेट हासिल किया है एक दिवसीय मैचों में, लेकिन तब तक विराट कोहली अपना काम कर चुके थे। विराट कोहली एक नए कीर्तिमान को स्थापित करके वापस जब सही पवेलियन लौटे, वहां पर तमाम भारतीय टीम के सदस्यों ने, स्पोर्ट्स स्टाफ ने, टीम के कोच ने, विक्रम राठौर ने और अन्य सदस्यों ने उनका अभिनंदन किया और एक जो चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक संतोष की, वो निश्चित रूप से शानदार थी। रचन के नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद को हवा में काफी ऊंचा खेल दिया है वहां पर श्रेयस अय्यर ने और गेंद सीमा रेखा से बाहर लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर अब भारत का बढ़ता हुआ पहुंच गया है 333 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रचिन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार ऑप्शन से बाहर की तरफ गेंद को दिशा देना चाहते थे बल्ले को आड़ा करते हुए, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी किस्म का कोई संपर्क नहीं और बाकी का काम पूरा किया टॉम लेथम ने जो कि विकेट के पीछे खड़े हुए थे। रचिन की अगली गेंद और इस बार बैकफुट पे जाकर कट किया, लेकिन स्वीपर कवर पर फील्डर मौजूद है। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा श्रेयस को। इस 1 रन की मदद से उनका व्यक्तिगत स्कोर बढ़कर के अब पहुंच चुका है 84। क्या अपना शतक पूरा कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो ये विश्व कप का उनका दूसरा लगातार शतक होगा। इससे पहले नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली थी, 128 रन बनाकर नाबाद रहे थे। इस समय बीच मैदान पर पिछले मैच के दोनों शतकवीर नजर आ रहे हैं, केएल राहुल और साथ ही साथ
श्रेयस अय्यर जिन्होंने कि अब तक बहुत उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। केएल राहुल इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। फील्ड प्रेसिंग का मुआयना किया, तैयार। पहली गेंद जिसका सामना उन्होंने किया, बैकफुट पे जाकर इस गेंद को दिशा दे दी। गेंद को वहां पर धकेला था डीप पॉइंट की तरफ, एक आसान से रन के लिए, और इसके साथ ही उन्होंने अपना खाता खोल लिया। जो पहला रन बनाने का दबाव किसी भी बल्लेबाज के ऊपर होता है, उससे अब वो पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं। लेकिन भारत इस मुकाबले में, सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है। अगली गेंद रचिन की, फिर से ऑफ स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास नहीं किया, ये देखते हुए कि ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर थे, और अंपायर की तरफ निगाहें उन्होंने की रिचर्ड एलिंगवर्थ की तरफ, लेकिन उन्होंने उस गेंद को वाइड करार नहीं दिया। रचिन एक बार फिर से गरवारे चोर की तरफ से गेंद को इस बार उठा करके खेल दिया, गेंदबाज के सर के ऊपर से। कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए, गेंद साइड स्क्रीन के सामने जाकर गिरती हुई 6 रनों के लिए। क्या शानदार बल्लेबाजी की है आज श्रेयस अय्यर ने। जिस अंदाज में उन्होंने एक तूफानी पारी खेली है, वो निश्चित रूप से काफी लंबे समय तक याद की जाएगी। 45 ओवर के बाद भारत 341 को विकेट के नुकसान। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Well, India 341 for 2. Shreyas Iyer is on 90 of 62, and the way he is going, he will not have to wait for long before he perhaps gets to that 3-figure mark. Perhaps because, yes, this is a game of cricket. There is many a slip between the cup and the lip, and you never know what happens next. But then he's looking in imperious form. He's already scored runs a dozen in this World Cup. 421 runs already under his belt before this match, Shreyas Iyer. And this World Cup has sort of found India a secure number 4. And this time it is KL Rahul, also again a man who is come into form, a man who is groping for form, KL Rahul, and he's done extremely well with both the bat and the ball in this World Cup. And now it's going to be, of course, Shreyas Iyer who's going to be on strike. Shreyas Iyer, he is on 90, 341 for 42 for 2, and it's going to be Tim Southee who's running away from us from the pavilion end, bowling to Shreyas Iyer, who waits a 90. Shreyas Iyer drives past the bowler. This is running down to just below us, and it's Santner who picks up right below the commentary box here, from running in a couple of yards to his right from the long on region, and one more to the India total. Shreyas Iyer with that moves to 91. The Indian total now moves to 343 for 2, and that will bring in strike KL Rahul. He goes away from us, Southee bowls to Rahul. Rahul this time pulling that ball away, and this is racing away for 4 runs. There was a man patrolling the sweeper position there, deep inside that mid-wicket region, and Conway does his best to prevent the ball from rolling over the ropes. In the process, he's probably just hurt himself a little. I hope from New Zealand's point of view it isn't anything serious, and India gallop away to 347. Conway holding his knees a little, trying to rub it down. I hope from the New Zealand point of view it isn't anything serious. There is a little bit of an attention that he'll get from the physio at the edge of the ropes there. Conway trying to kick that ball back into the ground, and in the process only managed to kick it into the advertising stands there. So once again he runs away from us, does Southee, over the wicket and bowls, and this time KL Rahul is playing a good looking shot, but there is a man stationed there very intelligently by the New Zealand captain,
a fine leg just inside the circle there, a little squarish fine leg, just that perfect position for that sweep shot, the paddle sweep that people play, and so no runs accrue to India. 347 for 2. We're in over number 46. So if we look at another 10 runs and over, we are looking at 380, 387, 390. But India would be hoping this one, a slower one from Southee, and foxed by that one is Rahul outside the off stump. Played the ball too early. The ball was yet to arrive when he was through his shot. Foxed by that slower one, Rahul, but that's all right. A bowler will get the better of a batsman once in a while, but this Wankhede pitch has played out to be a belter. The news was that the grass was shorn off between yesterday and today, leaving it a bald patch and leaving it a slower wicket than it normally is, and this time Rahul takes one on the ribs. It was dug in a little short, end of that over. He's in some pain. 347 for 2 at the end of the 46th over. Rahul and 6 Shreyas Iyer and 91. चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। टीएम साउदी के पिछले ओवर की अंतिम गेंद, जो कि धीमी गति की गेंद थी, धीमी गति का बाउंसर था और उसे खेलने के प्रयास में पूरी तरह से चूके थे और गेंद सीधा जाकर राहुल के रिब्स में टकराई थी। लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक तैयार है। इस समय वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि स्ट्राइक लेने के लिए इस समय थोड़ा सा गार्डनिंग करते हुए पिच पर श्रेयस अय्यर, और अगली गेंद का सामना करने के लिए नए ओवर की ट्रेंट बोल्ट के। तो देखना यह है कि ट्रेंट बोल्ट यहाँ पर क्या कुछ कर पाते हैं, जबकि 91 के व्यक्तिगत स्कोर पर हैं इस समय श्रेयस अय्यर। पूरी एकाग्रता के साथ ओवर द विकेट ट्रेंट बोल्ट, और इस बार इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर वहां पर तैनात है, 1 रन से ज्यादा नहीं मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के वहां पर थोड़ा सा ओवर थ्रो, लेकिन बैकअप कर रहे थे रचिन। एक क्षण के लिए श्रेयस अय्यर अपना मौका ताड़ना चाहते थे, लेकिन जब देखा रचिन को आते हुए तो फिर एक अतिरिक्त रन लेने का इरादा भी उन्होंने त्याग दिया। 1 ही रन इस गेंद पर। भारत इस 1 रन की मदद से 348, 2 विकेट के नुकसान पर। राहुल, जिन्होंने 62 गेंदों में नीदरलैंड्स के खिलाफ अपना शतक बनाया था, और इस तरह से भारत के विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में वो पहले स्थान पर पहुंच गए थे। फिलहाल तैयार हैं ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। बैकफुट पे जाकर इस गेंद को वहां पर कट किया, गेंद सीमा रेखा से बाहर, दंदन आती हुई 4 रनों के लिए। कोई मौका नहीं वहां पर खिलाड़ी के लिए। टीम साउदी वहां पर बैकवर्ड पॉइंट पर मौजूद थे, लेकिन गेंद उनके सामने टाइप जरूर लगाई, उनके हाथों के सामने से निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर चली गई थी 4 रनों के लिए। इसके साथ ही भारतीय पारी के 350 रन भी पूरे हो चुके हैं। 352 भारत का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। हमारे स्कोरर किशोर लामने बता रहे हैं कि भारत ने ये 350 रन 278 गेंदों का सामना करने के बाद और 210 मिनट तक बल्लेबाजी करने के बाद हासिल किए। अगली गेंद इस बार काफ़ी अच्छी गेंद थी, खेलने के प्रयास में चूके पूरी तरह से। गेंद छकाती हुई सीधा विकेट कीपर टॉम लेथम के दस्तानों की तरफ। लगभग 139 किलोमीटर की रफ्तार की ये गेंद थी ट्रेंट बोल्ट की। और ट्रेंट बोल्ट जब किसी मैच में विकेट ना लें तो बड़ा अटपटा सा महसूस होता है, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जो कि अक्सर न्यूजीलैंड को न केवल पारी की शुरुआत में सफलताएं दिलवाते हैं, बल्कि जब मध्य ओवर्स में या फिर डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी टीम को उनसे अपेक्षाएं होती है। अगली गेंद इस बार रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, लेकिन गेंद पैड पर टकराई। अपील एक हल्के से, उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया लेग बाय के रूप में। Coming to what you're talking about, Trent Boult, okay, one of the prime new ball bowlers the world over. But you know, it's extraordinary batsmanship that makes extraordinary bowlers look ordinary. 13 विकेट कुल मिलाकर इस विश्व कप में है ट्रेंट बोल्ट के नाम। न्यूजीलैंड की यदि बात करें तो सबसे सफल गेंदबाज उनके सेंटनर रहे हैं, जिन्होंने अब तक 16 विकेट हासिल किए हैं। बोल्ट की अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को, जो कि ऑफ स्टंप की तरफ थे,
दिशा दे दी थर्ड मैन की तरफ। फील्डर मौजूद है फेर्ग्यूसन, 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया, लेकिन बहुत ही तेजी के साथ, चपलता के साथ दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से अब श्रेयस अय्यर पहुंच चुके हैं 93 के व्यक्तिगत स्कोर पर, मात्र 7 रन दूर हैं अपने शतक से। इस विश्व कप में अगर वो ये शतक लगा लेते हैं तो ये उनका दूसरा लगातार शतक होगा। अपना पहला ही विश्व कप खेल रहे हैं। अगली गेंद और इस बाहर ये गेंद को खेलना चाहते थे आनन फानन के अंदाज में। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। 47 ओवर के बाद भारत 354 2 विकेट के नुकसान पर। दिस ओवर इज ब्रॉट टू यू बाय ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। 354 for 2, and the Indian batting looking stronger and stronger and stronger. All the Indian batsmen, their strike rate, their scoring rate has been well over 100. Rohit Sharma 162, Shubman Gill 122, Virat Kohli 104, Shreyas Iyer 143, even KL Rahul, who's just come in, is scoring at run a ball. So that's been the kind of dominance India has had with the bat here in this semi-final. 47 overs gone, 354 for 2. KL Rahul 10 of 10 deliveries, Shreyas Iyer 93 of just 65. The field well spread out as Tim Southee comes back to just below us in the commentary box and runs away from us, bowling to Shreyas Iyer. Bowls to Iyer. Iyer this time hoiks the ball over mid-wicket, all the way into the galleries, into the stand for yet another 6. And with that shot, he's moved to just 1 run short of his century. Shreyas Iyer, what an innings, what a turnaround this World Cup has proved for him. In cricket's most sought after, most prestigious tournament, this batsman who's been struggling to find and cement a place in the one-day squad, who has been accused of not being able to negotiate the short stuff, has demonstrated with grit, with determination, with talent, with ability, that he belongs to the top drawer. Shreyas Iyer, 99 of 66, 360 for 2. We are in over number 48 now. Shreyas Iyer waits. Shots all round the wicket as Southee goes away from us, bowls to Shreyas Iyer. Shreyas Iyer drives too long on. Santner tears who fields, and he gets to that 3-figure mark here. Shreyas Iyer getting to his 100 here. A man who's played prolifically. He is so far had scored 4 centuries in one day, and now he scores his 5th century here. And what better stage than the semi-final of the World Cup? इसमें कोई संदेह नहीं है, एक बहुत बड़े मंच पर आकर के उन्होंने ये प्रदर्शन किया है। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, जो एक विश्वास से टीम प्रबंधन ने उनमें रखा, उसे पूरी तरह से इस विश्व कप के दौरान उन्होंने सार्थक करके दिखाया। और उन्होंने जो ये 100 रन बनाए हैं 67 गेंदों का सामना करते हुए 112 मिनट तक की बल्लेबाजी की, जिसमें 3 चौके और 8 छक्के हैं। And this time as Southee bowls, and he has been whipped away towards the backward square leg region by KL Rahul for a single. He moves to 11. Shreyas Iyer, who's just completed a century of 66 deliveries, and he will be on strike. The lights beginning to take a little effect here at the stadium as the sun wanes over the Mumbai horizon. It's still there in the horizon. There is this tinge of purple as Southee runs away from us, bowls to Shreyas Iyer. Shreyas Iyer this time doesn't quite time that ball well. In the process drags it towards the deep mid-wicket region all along the ground though. But he'll pick up a single. He'll be happy with that.
India's current run rate at 7.62, 363 for 2, over number 48 in progress. KL Rahul on 11, Shreyas Iyer on 1. India's scorecard so far, for those of you who are just about tuning in late: Rohit Sharma was the first to go, caught Kane, Williamson, Boult, Tim Southee for 47 of 29 deliveries. The next wicket to fall was that of Virat Kohli, caught Devon, Conway, Boult, Tim Southee for 117. And this time this ball has been played away towards the deep square leg region, and the batsman will find the opportunity to come back for the second run. KL Rahul is on 13. He's another delectable player to watch, KL Rahul, and he is sort of come into his own in this World Cup with some electrifying wicket keeping and some very, very, very good batting. KL Rahul, 9 matches, 347 runs before this at a strike rate of 93.53. As Southee runs away from us, wide of the crease, bowls to Rahul. Rahul this time finds a little room, flashes, and I wouldn't say flashes, it was more a kind of a open-wristed, half drive, half cut kind of a shot all along the ground to the point region. And 366 for 2, end of that over, 48 overs gone. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. बचे हुए 2 ओवर्स में और कितने रन बन पाएंगे, ये एक दिलचस्पी की बात होगी। इसी पिच पर इस विश्व कप का इस मैदान पर जो पहला मुकाबला था 21 अक्टूबर को इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच, उसमें दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 399 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। और इसी मैदान पर भारत और श्रीलंका का मुकाबला इसी पिच पर हुआ था 2 नवंबर को, जब श्रीलंका को बहुत बड़े अंतर से भारत ने हराया था 302 रनों से, और भारत ने यहां पर बल्लेबाजी करते हुए 357 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। आज भारत उस स्कोर से आगे निकल चुका है 366 2 विकेट के नुकसान पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वानखेड़े स्टेडियम पर एक दिवसीय मैचों का जहां तक सवाल है, दूसरा मुकाबला है। इससे पहले जो मुकाबला हुआ था वो 2017 में हुआ था, उसमें भी विराट कोहली ने शतक लगाया था, 121 रन बनाए थे, लेकिन भारत वो मुकाबला 6 विकेटों से हार गया था। फिलहाल नए ओवर की पहली गेंद को उठा करके खेल दिया कॉर्नर में, गेंद सीमा रेखा से बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। It was inviting to be hit, over pitch, straying into the pads, and KL Rahul said thank you. And श्रेयस अय्यर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि गेंदबाज कौन है, तेज गति का गेंदबाज है या फिर स्पिनर हैं वो, बल्कि वहां पर राहुल थे, केएल राहुल माफ कीजिएगा, और जिस तरह से उन्होंने खेला ये स्ट्रोक निश्चित रूप से काबिल तारीफ। इस छक्के की मदद से 20 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच गए हैं। केएल राहुल एक बार फिर से तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए, और इस बार इस गेंद को खेल दिया है थर्ड मैन की तरफ, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। थर्ड मैन पर फील्डर तैनात था, साथ ही साथ बैकवर्ड पॉइंट पर भी एक फील्डर, लेकिन दोनों के बीच में गैप हासिल किया और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। पहली 2 गेंदों में 10 रन। This is absolute class written all over it. Just a flick of the wrist, opening the wrist and piercing the gap. The ball racing to the fence like a bullet. केएल राहुल पूरी फील्ड प्लेसिंग का मुआयना करते हुए, ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर उनके लिए। अगली गेंद इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद, बल्ले की जड़ से इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन 1 ही रन मिल पाएगा इस अवसर पर। इस 1 रन के साथ भारत 377 2 विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल भी बढ़िया अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस पिच पर मानो इस समय बल्लेबाजी करना काफ़ी सहज हो गया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा आनंदो कि जब फ्लड लाइट्स में भारतीय टीम की पेस बैटरी आक्रमण करेगी तो क्या उन्हें वहां पर कोई स्विंग मिलेगी, क्योंकि अब तक अमूमन विश्व कप के यहाँ पर जो मुकाबले हुए हैं उसमें फ्लड लाइट्स में तेज गेंदबाजों को खासी मदद मिली है। अगली गेंद और इस बार फिर से गेंद को खेल दिया कॉर्नर में, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की जोड़ी इस समय तेज गति से रन बटोरने में लगी है, और श्रेयस अय्यर जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं आज वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ। यहाँ पर बैठे तमाम दर्शकों का उन्होंने
मौन मोह लिया है, मंत्रमुग्ध कर दिया है. Yes, this is like the emergence of a batsman who is considered good. From good, he's having a shy at greatness here. And this time a hoik, mighty hoik, will not yield good results. And a wicket falls and Shreyas Iyer goes. KL Rahul almost giving him an admonishing box on the helmet. यहाँ शानदार बल्लेबाजी और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम. ड्रेसिंग रूम में जाएंगे तो वहाँ पर भी उनकी प्रशंसा होगी, उनका अभिवादन होगा, उनका अभिनंदन होगा. और हो भी क्यों ना, एक ज़बरदस्त पारी उन्होंने आज खेली है. न केवल विराट कोहली ने बल्कि उन्होंने भी अपने बल्लेबाजी से यहाँ पर तमाम दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है, उनका दिल जीत लिया है आज. और भारत को एक बहुत ही सेफ कंडीशन में लाकर इस मुकाबले में खड़ा कर दिया, एक मजबूत स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया है. अगर कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा. और अनिंदो, अगर ये कहा जाए कि ये सूटकेस में उन्होंने इस मैच के परिणाम को रख लिया है, सिर्फ ताला लगाना बाकी है, तो शायद कोई अतिशोक्ति नहीं होगी. Well, that is a bit of an optimism working, and I'm sure all the spectators here at the Wankhede Stadium are hoping that India have sealed the fate of the match. 381 for 3, last over of the 49th over in progress. तो डैरिल मिशेल के हाथों कैच होकर इस समय वापस पवेलियन लौट रहे हैं श्रेयस अय्यर. एक शानदार पारी उन्होंने खेली. कुल मिलाकर उन्होंने 105 रनों की जो पारी खेली, मात्र 70 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें 4 चौके और 8 छक्के शामिल थे. नए बल्लेबाज इस समय बीच मैदान पर है सूर्य कुमार यादव. और इस विश्व कप में ज़्यादातर समय वो बल्लेबाजी के लिए तब मैदान पर उतरे हैं जब बहुत ज़्यादा ओवर बचे नहीं होते. Yes, Surya Kumar Yadav has not been able to, I'd say, display his heroics. Such dominance has been in India's top order. Surya Kumar Yadav, but he quickly, with that big swing of his bat and the wristy, acute angles that he creates, gets himself off the mark. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. फिलहाल यहाँ पर जीत की उम्मीदें काफ़ी बढ़ चुकी हैं भारतीय टीम के सेमीफाइनल मुकाबले में. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला सेमीफाइनल मुकाबला है 2023 के ICC पुरुष विश्व कप का. अंतिम ओवर की जिम्मेदारी यहाँ पर कप्तान ने सौंपी है टिम साउदी को. एक लंबी मंत्रणा कप्तान केन विलियमसन और साथ ही साथ टिम साउदी के बीच में होती हुई. और टिम साउदी वो गेंदबाज जो कि आज न्यूजीलैंड के लिए एकमात्र सफल गेंदबाज रहे हैं. 2 विकेट जो आज न्यूजीलैंड को मिले वो दोनों ही उनके खाते में हैं. उनकी गेंदबाजी के विश्लेषण को यदि आप देखें तो 9 ओवर की गेंदबाजी में 85 रन दिए और 2 सफलताएं उन्होंने हासिल की. महंगे ज़रूर साबित हुए. इकॉनमी रेट उनका 9.44 का. अंतिम ओवर की पहली गेंद की शुरुआत, गेंद को हवा में खेल दिया है और क्या वहां पर लपक लिए जाएंगे? जी हां, लपक लिए गए और इसके साथ ही पारी का समापन हो गया. सूर्य यादव आए और सूर्य यादव चले गए. Yeah, that's all right. I think at this stage of the game you are supposed to swing your bat around, get whatever you can. You're not playing the ball on the merit. You're wanting to get as many runs as possible. Surya Kumar had a defined, I think, role here to play. Go, swing your bat, get as many as you can. But he takes the walk back to the pavilion. Caught Phillips, Boult, Southee, Surya Kumar Yadav. And the Indian total with the fall of that 4th wicket beginning to look a little more modest than it was a short while ago. So, and it's Gill who has come out again. Gill, if you remember, had retired hurt after developing a cramp. He was in 79 then, and he's sort of come back to take strike. He'll be on strike, 382 for 4. We are in the last over of the Indian innings. 29 dots, 2 fours in that innings of his, and Gill this time swings his bat, not for too many. The ball drags along rather limply, shall I say, across the turf towards the long on region for his single. Gill moves to 80. That'll bring on strike KL Rahul
who is on 25. Rahul has looked delightful in this short stay at the wicket. He has also had a very, very, very good World Cup, KL Rahul, both with the bat and with the ball. And for a man who has been struggling to find his place, cement his place, and a man who was written off at one point in time, KL Rahul waits as Southee bowls, and this time he hoiking it all over long on for a towering six. Santner and Phillips collide into each other in an attempt to see whether they could get to that ball. It doesn't happen. They have a good laugh. India gallops away to 389. 3 more balls left. Will they get to that magical 400-run mark? Ashish, is anybody's conjecture. जहाँ सूर्य यादव संभवतः उसी प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे थे। इस ओवर की पहली गेंद पर एक लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अपने इरादे में कामयाब नहीं हुए थे और टीम सऊदी को मिलने वाली वो तीसरी सफलता थी। एक सफलता अब तक बोल्ट के नाम दर्ज है। टीम सऊदी तैयार एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, और इस बार इस गेंद को स्विच हिट लगाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से निकलती हुई सीधा एक बाउंस के बाद विकेट कीपर टॉम लेथम के दस्तान हो गए। KL Rahul 3 4s and 2 6s in his innings of 31, and that has come in very quick time, in 18 deliveries, as Southee has got the last 2 balls to bowl in this Indian innings. 389 for 4 as the floodlights take glorious effect here at Wankhede, and this time this ball has been pulled away towards the squalid region, all the way for 4 runs, 1 drop, and over the fence. KL Rahul moves to 35, India to 393 for 4. Well, even if the last ball were to give them a 6, they'll still be 1 shy of 400. शुभमन गिल जो कि सूर्य यादव के आउट होने के बाद मैदान पर आए हैं, जब चोटिल होने की वजह से मैदान से बाहर गए थे तो 79 का व्यक्तिगत स्कोर था, इस समय 80 पर हैं। और देखना यह है कि यहाँ पर KL राहुल जबकि स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं, अंतिम गेंद पर क्या कुछ कर पाते हैं। KL Rahul has lofted that ball, opening the face of the bat, a sliced cut, as they say, over third man, all the way for 4 runs. 397 for 4 in 50 overs. Southee finishes with 3 for 100, and well, KL Rahul once again coming good with the little opportunities that he had. Some lusty, good hitting, cricketing shots that only KL Rahul can play. He is a delightful batsman to watch, and so India finish with 397 for 4. New Zealand need 398 runs to win here at 7.96 runs per over. Ashish. तो आनंदो, निश्चित रूप से भारतीय बल्लेबाजी ने आज काफी प्रभावित किया। इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय था उसे पूरी तरह से सार्थक किया। कप्तान रोहित शर्मा ने 47 रनों की पारी खेली। शुभमन गिल जो कि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में उनके साथ आए थे, लेकिन चोटिल होने की वजह से 79 रनों के व्यक्तिगत स्कोर जब उनका था तो बाहर जाना पड़ा था, लेकिन सूर्य यादव के आउट होने के बाद पुनः वो बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्कोर में 1 रन को जोड़ पाए, 80 रन बनाकर वो नाबाद रहे। विराट कोहली ने आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वानखेड़े स्टेडियम पर मुंबई पर 117 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली और एक दिवसीय मैचों में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों का जो रिकॉर्ड था पहले वो बराबरी कर चुके हैं इसी विश्व कप में। इस बार उन्होंने एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया। श्रेयस अय्यर ने लगातार इस विश्व कप में अपना दूसरा शतक लगाया। 105 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली। KL राहुल ने तेज गति से रन बनाए, मात्र 20 गेंदों का सामना करते हुए 39 रनों की पारी खेली और भारत को 400 के काफी नजदीक यहां पर लाकर खड़ा करने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। सूर्य कुमार यादव रनों की गति को बढ़ाने के प्रयास में एक लंबा ऊंचा शॉट खेल बैठे और सिर्फ 1 रन बनाकर वो वापस पवेलियन लौटे थे। जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो सबसे सफल गेंदबाज टीम सऊदी रहे, जिन्होंने 3 सफलताएं हासिल की और ट्रेंट बोल्ट को 1 सफलता हासिल हुई।
तो जैसे ही यहाँ पर पारी की शुरुआत होगी न्यूजीलैंड की टीम की, हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित रहेंगे। फिलहाल आप हमारा विशेष कार्यक्रम सुनिए, कौन बनेगा विजेता, दिल्ली स्टूडियो से। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 प्रायोजक उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, जागो ग्राहक जागो और सह प्रायोजक निमहंस। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाएं। टेलीमानस को 14416 पर कॉल करें। कोई भी पैक्ड सामान लेने से पहले एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन आदि जानकारी अवश्य देखें, क्योंकि जागरूक उपभोक्ता मतलब स्वस्थ उपभोक्ता। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या आपको नींद में परेशानी होती है? क्या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। कौन बनेगा विजेता? नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कार्यक्रम है कौन बनेगा विजेता। मैं हूं शिवेंद्र, हमारे साथ हैं हमारे आज के विशेषज्ञ मलय नीरव, खेल समीक्षक वेंकट सुंदरम, पूर्व क्रिकेटर, और रविंदर सिंह, BCCI कोच। आप सभी महानुभावों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। हमारे सभी एक्सपर्ट्स के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता लेकिन मुस्कान का पट जारी है, क्योंकि लाजमी सी बात है, भारत ने टॉस जीता और सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे सेमीफाइनल में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर की भारतीय टीम का जो विजय अभियान है, जिस अंदाज में उन्होंने खेल जारी रखा पिछले 9 मुकाबलों में, इस नॉकआउट में भी उसको जारी रखेंगे। तो बल्ले से तो फिलहाल कमाल दिखाया है। भारतीय बैटर्स ने 397 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। यानी न्यूजीलैंड को अगर फाइनल में पहुंचना है, 19 तारीख की टिकट बुक करनी है अहमदाबाद की, तो उनको 398 रन बनाने होंगे। और जिस अंदाज में भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि 400 से कम पे रुकेंगे नहीं, तो ऑलमोस्ट उस तक तो पहुंच गए हैं। मलय, किस अंदाज में रही भारतीय बल्लेबाजी, कैसे आप एनालाइज करेंगे? कहीं कुछ कमी तो नहीं दिखी? नहीं, पहले से बेहतर। जो 9 मैचों में भारत ने प्रदर्शन किया है, उससे भी बेहतर यहां प्रदर्शन कहा जाएगा। वो इसलिए कि जिस प्रकार से एक तूफानी शुरुआत रोहित शर्मा के बल्ले से हुई, शुभमान गिल उनका साथ दे रहे थे, जिन्होंने 66 रनों में 80 रन बनाए, और रोहित की तो बात ही निराली थी। अपने लिए नहीं, देश के लिए, अपनी टीम के लिए खेल रहे थे। 29 रनों में 47 रन का योगदान, 4 छक्के 4 चौके। बता दिया था शुरुआत में ही कि हम तुम्हारे गेंद की बखिया उधेड़ने वाले हैं, संभल कर रहना। और उसके बाद जो पीछे विराट कोहली आए, उन्होंने अपनी परिपक्वता का परिचय दिया। जी, थमे, ठहरे, रुके, देखा, उसके बाद परखा, फिर मारा।